We had a great business at one time जब मैं 6th क्लास में था. In one day we lost everything. We were in huge debt. घर चला गया, सब चला गया. तो हम उस पॉइंट पे आ गए कि मैं सड़क पे 1-1 रुपए का जलजीरा भी बेच रहा था. मैंने सबसे ज्यादा बड़ी गिल्ट ट्रिप उनको दी जब कुछ होता है. उसमें वो एक लड़का था, तुसी ना आ जाओ, राइट? मैंने कहा इसकी जगह मैं होता. मैंने देखा कि माइंडसेट का क्या रोल है. इस बंदे के पास कुछ नहीं है, ऐसे लोग सुसाइड करते हैं, इसके पीछे दुनिया जहान के लोग पड़े हुए हैं, झूठे केसेस इसके ऊपर हो रहे हैं, लेकिन ये मुस्कुराता है शाम को और कहता है नहीं, वी विल रीबिल्ड इट. कुछ साल लगेंगे मतलब आप रेडी हो 2,500-3,000 दिन के लिए. अब बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट में फ्राइडे नाइट जब ओवर अ ड्रिंक बैठते हैं कि यार अपना कुछ करना होता है. थॉट तो होता है कि अपना कुछ करना है. करने का जो एक्शन परसेंटेज है वो बहुत कम होता है. तो मैं भी उस ब्रैकेट में था कि मन करता था कि मेरे इतना अच्छा पैक्ट है, इतने अच्छे सेशंस होते हैं, मैं अपना क्यों ना कर लूं. मेरा एक मिनी ब्रांड कंपनी के अंदर बन गया, तो मैं अपना ब्रांड क्यों ना बना लूं. बट ये बहुत मुश्किल होता है. हमेशा ना किसी के बड़े एक्शन के पीछे बड़ी इमोशन होती है. वो बड़ी इमोशन नहीं थी, जैसे रॉकस्टार मूवी में था ना कि वो जब बड़ी इमोशन आई तो ट्रांसफॉर्मेशन हुई. गायक तो वो अच्छा था, ही वाज अ गुड सिंगर, बट इमोशन वाज मिसिंग. सिमिलरली आई वांटेड टू डू ग्रेट थिंग्स. जॉब छोड़नी है, अपना कुछ करना है, बट कोई इमोशन नहीं थी. बट वंस आई वाज गोइंग टू डिलीवर अ ट्रेनिंग, सडनली उस बस में से एक लड़का जंप करता है टू अटेम्प्ट अ सुसाइड. Hello everyone and welcome back to the Dhairya Decodes YouTube channel. And today I am going to be introducing you to a very interesting guest that we have joining us on the Dhairya Decodes podcast. I first interacted with him for a social media retreat at the Isha Yoga Center in Coimbatore. And after that, we have kept in touch and I'm glad we did. Today, joining us, we have Himish Madan, who is an international motivational speaker, a YouTuber, an entrepreneur, an author, and somebody who has amassed over 5 million plus subscribers on YouTube alone. He started his YouTube journey in 2012, so he's one of the OG YouTube creators for sure. And not just that, what's also interesting is, like I mentioned, he went on to author a book also. And everything that he has done, right from being a trainer and being right from being a trainer to actually working in an airlines to now building a massive social media empire and a company for himself wherein he has a team working with him. We are going to be decoding Himish Madan's career journey, everything that worked out for him, things that didn't work out for him. How did he decide on becoming a motivational speaker and inspiring people? And a lot more. So stay tuned till the very end of the video. There's a lot that we are going to uncover about him. Welcome to the Dhairya Decodes podcast, Himish. Thank you so much, Dhairya. So excited to be here and I'm sure we'll have great interaction today. Definitely. मैं जब भी आपसे मिलती हूँ हिमीश तो there is a very positive energy and a vibe which is very extremely positive. Optimistic is the word, right? I always see you smiling. There is that aura ki, everything is good, life is nice, and that then it rubs off, right, as an energy, and it's always a good time to have a conversation with you. But जब मैंने सोचा that चलो हिमीश को पॉडकास्ट पे बुलाएंगे, we'll have a great conversation. My major objective मैं आपको बताती हूँ, मेरे दिमाग में ये था more than an objective कि जिस तरीके के I would say स्टूडेंट्स से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल से मैं इंटरेक्ट करती हूँ, right across the age groups of 18 to 40 or 45 also. What I've understood is that one thing where people don't just face a challenge, but something that people are not able to understand is self-reflection, grooming themselves, working on their personality, and then accepting who they are, right? And motivation as a word is used very loosely. क्योंकि आप motivation word आपको पता ही है कितनी loosely use होता है, unfortunately. But when you have that responsibility on your shoulder to motivate other people, the main thing is आप हमेशा इतने सारे लोगों की responsibility ले रहे हो उनको motivate करने की. I wanted to go behind the scenes and understand what does it take to get to that stage to be able to do it for so many people, right? So I want to start with understanding, Himish. Today you do what you do. I gave an introduction to the audience. Let's go back in time and understand कि जब आपका जो early childhood था, right? आप किस तरीके के family background से आते हो? And I want to understand that did your growing up years and the people around you and the environment around you or the way your parents brought you up, क्या आपको लगता है उसका कुछ impact था in the way आपका mindset धीरे धीरे build हुआ या जो आपने career path choose किया अब जब आप सोचते हो, was there any contribution in that? That's a very interesting question क्योंकि एज अ कोच मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि हमारे बचपन में हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीफ सिस्टम बनते हैं, जो पैटर्न्स हम आसपास देखते हैं, उसका कितना बड़ा रोल होता है. सो लेट्स गो बैक के मेरे साथ ही क्या हुआ था. एक चीज़ है जो मेरी ना बड़ी अनरिलेटेबल है.
वो इसलिए कि जनरली जब हम कोई स्टैंड अप देखते हैं, किसी भी स्पीकर को सुनते हैं, तो एक लाइफ होती है। मान लो कोई मिडिल क्लास से है तो उसके पास बहुत सारा ह्यूमर मिडिल क्लास के अराउंड होता है, राइट। कोई पुअर क्लास से है तो वहां से होता है। मेरे बचपन में मैंने तीनों क्लासेस देखी थी। अच्छा। वी हैड अ ग्रेट बिजनेस एट वन टाइम जब मैं 6th क्लास में था। अमृतसर में हम रहते थे और अमृतसर की एक रेप्यूटेड फैमिली, अपर क्लास में आते थे। इन वन डे वी लॉस्ट एवरीथिंग, वी वर इन ह्यूज डेब्ट, घर चला गया, सब चला गया। तो हम उस पॉइंट पे आ गए कि मैं सड़क पे 1-1 रुपए का जलजीरा भी बेच रहा था। सो आई हैव सीन बोथ द थिंग्स। उसके बाद वहां से यहाँ आने में बीच में मिडिल क्लास एक अच्छा टाइम स्पेंड किया, तो वो तीनों जोन्स में रहे हैं। बट इवन जब हमारे घर में सब कुछ अच्छा था, व्हेन बिजनेस वाज देयर, आई वांटेड टू बी एन एक्टर। दैट वाज माय फर्स्ट एस्पिरेशन फ्रॉम क्लास 3 टू क्लास 5th एंड 6th। और क्यों पर लाइक मुझे परफॉर्मेंस अच्छी लगती थी, मुझे like स्टेज being on अच्छा the लगता stage, था। हाँ। यस, नर्सरी में मैं स्टेज पे चढ़ गया था। तो आप जाते थे मतलब प्लेज और ये सब करते थे डिबेट्स बचपन करता में? था। प्लेज अमृतसर में कम होते थे, साल में एक बार होता था हमारे स्कूल पे, और जब होता था मैं उसमें 2-3 रोल्स कर रहा होता था। सो आई वाज ऑलवेज वेरी ईगर कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें थिएटर, परफॉर्मेंस, स्टेज इन्वॉल्व है। राइट। और इतना था कि मैं अपने पेरेंट्स को कहता था, आप मुझे ट्रेन में बिठा दो, मैं मुंबई चले जाऊंगा, आई स्ट्रगल माई सेल्फ। अब 4th क्लास के बच्चे को बिठाएंगे नहीं, बट मैंने सबसे ज्यादा बड़ी गिल्ट ट्रिप उनको दी जब कुछ कुछ होता आई। उसमें वो एक लड़का था, हाँ, तुसी जो- ना जाओ, हाँ, ना जाओ, राइट। हाँ। मैंने कहा इसकी जगह मैं सरदार होता। जी। आपकी वजह से मैं नहीं हूं। बट अगर हम कनेक्ट करें तो मुझे परफॉर्मेंस का शौक था, स्टेज का शौक था। करेक्ट। व्हेन वी लॉस्ट एवरीथिंग, जब हम माइनस में थे, एक्टिंग का भूत उतर गया। अब तो था कि किसी तरीके स्ट्रगल करके मुझे आपकी एज क्या रही होगी उस टाइम? 6th क्लास में कितने साल का होऊंगा मैं? 12-13 12-13 हाँ। ईयर्स, राइट। 12-13 साल का था। सो 12-13 की एज में अब जब डेप्ट में हो, लीगल केसेस हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो मुझे लगा कि मुझे लॉयर बनना है। बिकॉज हमारे साथ कितनी चीज़ें गलत हो रही हैं, मुझे इंश्योर करना जब मैं बड़ा हूँ तो मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ। लेकिन यहाँ भी लॉयर में स्पीकिंग इन्वॉल्व है, राइट, हेल्पिंग इन्वॉल्व है। केस तो आपको परफॉर्मेंस के लड़ना है, साथ हाँ। वैल्यू जुड़ गया। एंड देन 9th 10th तक एक और ऑप्शन माइंड में आना शुरू हो गई, जर्नलिज्म। कि जर्नलिस्ट बन के आई वांट टू क्रिएट दैट अवेयरनेस। तो अवेयर करना, हेल्प करना और परफॉर्म करना, ये मेरे डॉट्स थे जो मेरे साथ जुड़ गए थे। बट जब आप अपनी 12th कंप्लीट करते हो, उसके बाद आपके माइंड में होता है कि अब पैसे कैसे कमाने हैं, घर में अभी भी लोन चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। सो आई नेवर हैड दैट फाइनेंशियल बैकअप कि मैं कॉलेज जा सकूं। सो आई नेवर वेंट टू कॉलेज इन माई लाइफ। You've never been to नेवर वेंट टू college? कॉलेज। आज IITs IIMs में मैं सेशंस करता हूँ, बट खुद कभी मैं एक रेगुलर एजुकेशन में नहीं गया। ये आई हैड नो। तो आपने बेसिक स्कूल तो आप गए थे? हाँ, मैं स्कूल गया, But college मैंने कभी नहीं? कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई करी फॉर द पर्पस ऑफ कि तुम्हारे पास एक स्टैम्प पेपर होना चाहिए। मैंने करी, बट आई नेवर वेंट टू अ कॉलेज टू डू अ रेगुलर एजुकेशन, नेवर अफोर्डेड इट। तो 20-25 हज़ार की सेविंग्स थी, उससे एक ही चीज़ हो सकती थी, कोई शॉर्ट टर्म डिप्लोमा। करेक्ट। सो आई वेंट एंड डिड अ एविएशन में एक डिप्लोमा होता है, एयर टिकटिंग एंड उसका मैंने वो किया। बट क्योंकि कंडीशंस ऐसी थी कि मैंने उसमें अपना बेस्ट दे दिया और टॉप रैंक आ गया। क्योंकि एक लौती पढ़ाई मेरी यही थी कि 3 महीने में अगर कुछ कर लिया तो कर लिया, वरना ये पैसे भी खत्म है, एंड देन एक अलग स्ट्रगल कंटिन्यूड रहेगी। सो आई गॉट अ ग्रेट रैंक। आई वेंट इनटू उस सर्टिफिकेट का बेनिफिट क्या होता है कि हर ट्रैवल एजेंसी को ना 2 मिनिमम लोग चाहिए होते हैं जिनके पास वो सर्टिफिकेट हो। वी कॉल दैट आईटा उफ्टा सर्टिफिकेट। आईटा? उफ्टा, आईटा उफ्टा, देयर 2 बॉडीज ऑफ एविएशन, Okay. ग्लोबल बॉडीज हैं, सब एयरलाइंस को Got it. गवर्न करती हैं। अब मेरे So पास वो these are basically travel agents who do the ticketing या for airlines. राइट। सो दे उसके नीड लिए टू हैव 2 examination, they पीपल need हु to- हैव आईटा सर्टिफाइड। Got it. उनकी एजेंसी में होने चाहिए। ठीक है। तो मैं आईटा सर्टिफाइड हो गया। हाँ। तो मैं जलंधर में एक एजेंसी में काम शुरू कर दिया मैंने। ठीक है। वहां से एक्सपीरियंस गेन किया एंड एयरलाइंस में आ गया दिल्ली। 3 साल एयरलाइंस में जॉब करी, बट अंदर वो परफॉर्मेंस का कीड़ा था। अब पैसे आने शुरू हो गए, सब कुछ हो गया। बाय 3rd ईयर आई वॉज प्रमोटेड एज अ ट्रेनर देयर। As a trainer? ट्रेनर, टीचिंग टिकटिंग टू other- स्टाफ ऑफ द कंपनी। जो भी न्यू जॉइनीज आते हैं मैं उनको ट्रेन करता हूँ। सो दैट वाज माय 3rd 4th प्रमोशन इन 3 इयर्स। क्योंकि ये भी फैक्ट है, जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, तो आप अपनी पूरा जो आपका 18-20 की एज में ना एनर्जी इज हाई, टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका हाई है, आप उसको प्रोडक्टिव कर रहे हो या डिस्ट्रक्टिव कर रहे हो, आपके पास है। मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं थी, मुझे प्रोडक्टिव ही करना था, राइट। कॉलेज में जाता तो शायद 20 चीज़ें और कर रहा होता, ऑफिस में बैठा होता था तो वहीं सारी एनर्जी लगाई। एंड दैट हेल्प मी टू बिकम अ ट्रेनर एट द एज ऑफ 21, ट्रेनिंग पीपल हु आर 30-40 की एज में। सो दैट वाज अ बिगेस्ट एक्सपोजर ऑफ माई लाइफ। Yeah. Must have given you a lot of confidence also. यस यस। Very जब आप early. ट्रेन करते हो, 1-2 महीने आप लगातार कर रहे हो, तीसरे महीने तक आप बहुत कुछ समझ चुके होते हो। Correct. पहले हफ्ते आपने देखा यार किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हाँ। मैं सिखा रहा हूँ, ये मेरे लेवल पे नहीं पहुंच रहा, और ऊपर से मेरे से बड़े हैं, मेरे से ज्यादा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है इनको। Correct.
फिर आप जाते हो सॉफ्ट स्किल्स की इंपॉर्टेंस पे कि ना इमोशन टच करनी होगी, इसको इजी करना होगा। वहां से मेरे अंदर वो ट्रेनर का डीएनए और डेवलप हुआ कि कैसे लाइफ स्किल्स को यूज करके, मोटिवेशन को यूज करके, उनके गोल्स, उनकी लाइफ, उनकी फैमिली की बात करके इनको टेक्निकल ट्रेनिंग देनी है। करेक्ट। एंड दोज रिजल्ट्स वर मल्टीप्लाइंग। एंड एक ब्लेसिंग थी मेरे पास, फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं थी, लेकिन मेरे घर में सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये इन चीज़ों की बुक्स हमेशा थी। ओह, सो ओके। माई फादर नेवर टुक अस टू ट्रिप्स, वी नेवर गॉट ग्रेट पॉकेट मनी जैसे What मेरे did he फ्रेंड्स। do, if I may, आपके father? We had businesses. Businesses, Yeah, we okay. had businesses. But he And would encourage you to read. या हम मतलब प्रमोद बत्रा उस टाइम के मोटिवेशनल स्पीकर एक लौते होते थे, उनकी बुक्स हमारे घर में होती थी, कोट्स पापा रेगुलरली बोलते थे। एंड वो जो पूरा टर्मोइल था, फाइनेंशियल टर्मोइल, उसमें एक ही ऑप्शन होती है कि सुसाइड कर लो, आप इतना बड़ा डेप्ट ले नहीं सकते हो। बट ही केप्ट ऑन स्माइलिंग फॉर 7-8 years एंड पूरा रीबिल्ड किया सब कुछ। दैट वाज माय बिगेस्ट एजुकेशन। तो मैं कॉलेज नहीं गया, क्योंकि लेकिन आपने वो जर्नी देख ली ना उनकी, Right. आपने तो लाइफ से ही Right. सीख तो ली। मेरे फादर मेरी यूनिवर्सिटी थे, तो मेरे कॉलेज ना जाने का अफसोस नहीं है, मैं यूनिवर्सिटी में गया था। राइट, राइट। सो दैट हेल्प्ड मी टू बिकम अ बेटर ट्रेनर। मैं इसलिए इसको कनेक्ट कर रहा हूँ Yeah, कि got बचपन it. में मैंने देखा कि माइंडसेट का क्या रोल है। इस बंदे के पास कुछ नहीं है, ऐसे लोग सुसाइड करते हैं, इसके पीछे दुनिया जहान के लोग पड़े हुए हैं, झूठे केसेस इसके ऊपर हो रहे हैं, लेकिन ये मुस्कुराता है शाम को और कहता है नहीं, वी विल रीबिल्ड इट। कुछ साल लगेंगे, मतलब आप रेडी हो 2,500-3,000 दिन के लिए ऐसे जीने के लिए। करेक्ट, करेक्ट। सो दैट वाज समथिंग जो मेरे अंदर, जिसने एक ट्रेनर को बहुत अच्छा ट्रेनर बनाया। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सो दैट्स हाउ आई वेंट इनटू एयरलाइंस। अमेजिंग। नहीं, बट यू नो, मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने एज अ टेक अवे लिया, जितना भी आपने मुझे बताया स्टोरी से, कि यू डिडंट गो टू कॉलेज, कोई फॉर्मल एजुकेशन हुई नहीं, पीयर टू पीयर लर्निंग, लोग बोलते हैं ना, एक फ्रेंड्स, एक एनवायरनमेंट, एक माहौल होता है, पर आपने उस टफ सर्कमस्टेंस में से भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट निकाल लिया, जिसने इन अ वे और द अदर, मैं बोल सकती हूँ, आई मे बी रॉन्ग, बट इट बिकेम अ सीड फॉर योर ग्रोथ एंड वॉट यूर डूइंग टूडे। जो आपने सीखा और आपने देखा, विच गोज ऑन टू अगेन शो की योर माइंड सेट इज एवरीथिंग। आप एक सिचुएशन में इधर वेज ही जा सकते हो, यू चूज विच वन यू वॉन्ट टू पिक। फ्रॉम देयर, हिमेश, आई वुड ऑल्सो लाइक टू अंडरस्टैंड कि जब आपने एविएशन इंडस्ट्री में शुरू कर लिया करियर, 3 साल में आपका प्रमोशन एक लेवल पे हो गया, वे यूर ट्रेनिंग पीपल 10 years 15 years यू नो एल्डर टू यू। जब आपने ट्रेनिंग शुरू की, बहुत नीश इंडस्ट्री में थी, क्योंकि टिकटिंग रिलेटेड ही होती होगी, आई एम अज्यूमिंग, या बेसिक सॉफ्ट स्किल्स जो भी। अब उधर से ये आइडिया या थॉट प्रोसेस कैसे बिल्ड हुई कि नहीं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प कर सकता हूँ मैं, या आई कैन गिव ट्रेनिंग्स टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉयज सो दैट दे कैन हैव अ बेटर लाइफ, स्ट्रक्चर थिंग्स फॉर देमसेल्फ। क्योंकि वो भी उस स्टेज पे सोच पाना, बिकॉज देखा जाए तो यू वर इन अ वेरी क्लोज नेट सर्कल ना। आप चाहते तो आप वही एविएशन इंडस्ट्री में, टिकटिंग इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करते रहते, ग्रो करते रहते। सो व्हेन डिड यू डिसाइड अब इससे बाहर निकलना है और कुछ और करना है? तो जब मेरे बैचेस लाइव होना शुरू हो गए, जिनको मैं ट्रेन करता था, जब वापस मुझे मिलते थे, तो वो टेक्निकल जो पढ़ाया उसकी डिस्कशन नहीं करते थे। अच्छा। वो लाइफ के वो कॉन्सेप्ट जो मैं ट्रेनिंग में दे जाता था, जो मैं अपनी कोई स्टोरी सुना जाता था, जब उनके लाइफ के गोल्स की बात कर जाता था, वो उसके लिए मेरे पास वापस आते थे। ओके। एंड दैट गिव मी अ वेरी बिग लेसन कि जो हम इम्पैक्ट माइंड पे करते हैं, जो हम इमोशंस पे करते हैं, उससे बड़ा कुछ नहीं है। राइट। वहां से मुझे ना वो एडिक्शन मिल गई, किक मिल गई लोगों को हेल्प करने की, इन चीजों के अंदर और डीप जाने की। तो अब मेरा मन कर गया मैं टेक्निकल निकाल दूं इसमें से और सिर्फ लाइफ स्किल्स रख लूं, नाइस। बिकॉज आई अंडरस्टूड 80% माइंड सेट है, अगर वो सेट है तो लाइफ सेट है, बाकी Right. चीजें इंसान खुद कर लेता है, ऑटो पायलट पे आ जाता है। करेक्ट। एंड फैमिली भी अब उस स्टेज में आ गई थी कि डेप्ट खत्म हो गया। अच्छा। अब हम सब ने क्या किया, जो हम 4 फैमिली मेंबर्स थे उस टाइम पे, हम लोगों के पास एक ही चीज थी, वो था एक्सपीरियंस। Right. कैसे प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, कैसे लाइफ से डील करना है। तो वी ऑल हैड दैट कीड़ा हमारे अंदर के दूसरों को सर्व करना है। राइट। सो मेरे फादर भी इनटू ट्रेनिंग में एक्टिव हो गए, इधर से मैं भी ट्रेनिंग में एक्टिव था। सो वी स्टार्टेड लविंग इट कि हमने इतना कुछ देखा और हम उससे बाहर आए हैं, मतलब सारा डेट उतारा है हमने। करेक्ट, करेक्ट। और कैसे उतारा है, पूरी जर्नी है, हार नहीं मानी, तो लेट्स टीच Teach अदर्स, others. राइट। तो मैंने एयरलाइंस की जॉब क्विट करी और उस टाइम पे अर्निंग के लिए, ट्रेनिंग वाज नॉट अ फाइनेंशियल Financial, करियर, हाँ। वो शौक था कि कोई एक असाइनमेंट मिल गई तो तब अच्छा पैसे लगेगा। मिलते थे थोड़े नहीं, बहुत? खास नहीं नहीं मिलते थे, नहीं मिलते थे। ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट 2010, तो 2010 अवेयरनेस नहीं थी। और उस टाइम पे मैंने .com बिजनेस में आ अच्छा, गया मैं। okay. एंड दैट वाज आल्सो इनिशियल टाइम ऑफ इंडिया, या 2010 तब तो yes, जस्ट शुरू ही हुआ था। एंड .com में आई वाज डूइंग वेल,
गॉट इट. अच्छा चल रहा था, बट क्योंकि बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं था, स्टार्टअप 2010 में किया और आइडिया कुछ नहीं है, पैसा अच्छा कमाया भी और अपनी गलतियों की वजह से अच्छा पैसा गवाया भी. एंड वो ये श्योर था कि अब डेप्ट में वापस नहीं जाना. गॉट तो इट. जब वो जीरो पे आ गया, रन अप खत्म हो गया, तो मुझे लगा कि मैंने एक पैरेलली ट्रेनिंग्स इतनी कर ली हैं, कभी कभी कोई असाइनमेंट कर ली है बहुत लो कॉस्ट पे, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन थी, मैं जॉब करूं लेकिन ट्रेनर की जॉब कर लूं, सो दैट मेरी एस्पिरेशन और स्ट्रांग हो, मेरा एक्सपीरियंस और स्ट्रांग हो. करेक्ट. Then I went back to corporate after shutting down my business in 2010. ओके. और मैनपावर ग्रुप एक रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग मैंने कंपनी सुना हुआ है, है. या I've उसके heard. अंदर मैंने ज्वाइन किया और Okay. वहाँ पे एज अ ट्रेनर ज्वाइन किया. एंड ग्रेजुअली वहाँ भी पूरा अग्रेसिव रहा कि 2 साल में मैं पैन इंडिया ट्रेनिंग लीड कर रहा था उनकी. वो किस तरीके की ट्रेनिंग्स होती थी? So it was इन पर्सन behavioral होती थी सारी skills. ऑफलाइन? जैसे कॉलेज में स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट के लिए रेडी करना, नाइस. थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस के लिए रेडी करना, कॉर्पोरेट के अंदर आपकी और मेरी behavioral जो skills. कुछ चीजें थोड़ी कॉमन दिख रही है मुझे, बहुत सारी अब जब मुझे पता चल रहा है, नॉट जस्ट दिस स्टोरी वाइज भी. हाँ. तो आप भी कॉलेजेस में मतलब शुरू मैंने placements कॉलेजेस से किया, Oh, देन भाई. ग्रेजुअली कॉर्पोरेट तो- ट्रेनिंग शुरू कर दी. एंड Nice. सो सेम सब्जेक्ट्स थे मेरे, बिहेवियर के ऊपर ही मैंने बात करी. Got it. कंपनीज में लोगों की कमिटमेंट इंक्रीज कर दी, सेल्स वालों की सेल्स इंक्रीज करा दी, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इंप्रूव करा दिया. तो ये सब चीजें मैं उस कंपनी के साथ कर रहा था. Got it. सो आई वॉज अ ट्रेनर फर्स्ट, क्रिएटर लेटर. Creator later. Yeah, correct. Trainer first. Same. I'm a trainer first. But हिमीश, इधर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे पूछनी, दैट विल बेनिफिट द ऑडियंस. जब आप ये ट्रेनिंग्स कर रहे थे एंड टू बी एबल टू इवन एड्रेस अ ग्रुप ऑफ लेट्स से 50 पीपल ऑल्सो हु आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, वो बॉल गेम एकदम अलग होती है वर्सेस अ कॉलेज. करियर के एंगल से अगर मैं उसको देखूं, अगर किसी को आज की डेट में भी इन जनरल ऐसी ट्रेनिंग्स करनी है, इज देयर अ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन एज सच नीडेड, और व्हाट डू यू थिंक मैटर्ड? लाइक आप पहले ट्रेनिंग करवा चुके थे एविएशन कंपनी में, दैट वुड हैव हेल्प्ड यू गेट दिस जॉब. बट टिपिकली इफ आई वांट टू डू अ जॉब ऑफ अ ट्रेनर इन behavioral aspects or soft skills, what kind of a career path should somebody take? Like, is there an advantage that people can get कुछ करके, या सर्टिफिकेशन ना भी हो तो इट्स ओके? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा. अगर किसी के पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, हाँ. अगर किसी ने से कभी लोगों के सामने ज्यादा बोले भी नहीं है, Correct. अगर उस तरह का बैकग्राउंड एक्सपोजर नहीं है, आई वुड से कि एक्सपोजर अगर कम है, हाँ. तो इस तरह की ट्रेनिंग्स, T3 वर्कशॉप्स, ट्रेन द ट्रेनर, Trainer. या इस तरह के से कोई डिप्लोमा कर लेना, इट विल हेल्प. Okay. It can be in public speaking also. Right. It can be a typical T3 workshop also. Yeah. तो ये चीजें हेल्प करेंगी, आपका एक लॉन्च पैड ईजी कर देंगी. बट ये प्री रिक्विजिट नहीं है, हाँ. ये मैंडेटरी नहीं है. Correct. हु आस्क कि शिवखेड़ा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, नहीं. फर्क ये पड़ता है शिवखेड़ा ने कितने लोगों की लाइफ बदली. Correct. टोनी रॉबिन्स, जिसको हम इस इंडस्ट्री के इफ वी कॉल गॉड कौन है, तो वो God, टोनी हाँ. रॉबिन्स है. Right. टोनी रॉबिन्स ने एनएलपी किया है नहीं किया, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है. हमें नजर आता है एनएलपी से वो लोग लाइफ बदल रहे हैं. एनएलपी इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, Yeah. राइट. सेम चीज मुझे लगता है आज भी एप्लीकेबल है. आपका इम्पैक्ट आपकी डिग्री से हमेशा ऊपर होगा, लेकिन शुरुआत में आपकी डिग्री आपको हेल्प कर देगी टू गेट इनटू कॉर्पोरेट्स, टू गेट इनटू से कॉलेजेस. It does matter. मतलब वो Yes. थोड़ा देखते तो आप होंगे. फ्रेशर हो तो आपको क्यों कोई कुछ हाँ, तो होना करेगा. चाहिए ना आपके पास. Exactly. या तो आप बोलो मैंने 5 साल में इतने लोगों की लाइफ बदली है, हाँ, या correct. तो वो जर्नी कवर करो, Correct. राइट. या फिर एक डिग्री सर्टिफिकेट लेके अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लो. Right. गिवन अ चॉइस करना चाहिए. आई डिड एक्टिंग एंड प्रेजेंटेशन का डिप्लोमा फ्रॉम अ फिल्म स्कूल जस्ट Okay. टू इम्प्रूव माई सेल्फ, इवन व्हेन आई वाज अ ट्रेनर. और अभी भी मैं कुछ ना कुछ कोर्सेज करता रहता हूँ, बिकॉज टिल द टाइम यू आर लर्निंग यू आर ग्रोइंग. वेरी सिंपल. Yeah, and I mean, जैसे आपने बोला, मे बी आपकी वो जो सर्टिफिकेशन है या अगर आप डिग्री जो भी ले रहे हो, इट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प यू इन मे बी ग्रोइंग, बट कुछ इनिशियली इम्पैक्ट उसका होगा, क्योंकि आगे जाके तो द इम्पैक्ट विल स्पीक फॉर इटसेल्फ. बट दैट ऑल्सो, जस्ट टू क्लैरिफाई, दैट ऑल्सो मीन्स कि कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो या somebody is a cinematographer या कोई भी वीडियो एडिटर हो, you can transition into this field. yes. It is about passion. ये Correct. पैशन वाला काम है. Perfect. अगर पैशन नहीं है तो ये काम हो ही हो ही नहीं नहीं सकता. सकता. और अगर पैशन है तो कोई प्री रिक्विजिट नहीं है इसका. Which is beautiful. Such a good profession to be in. छोटे छोटे डिसीजंस आप ले सकते हो. जैसे मैं जब MBA कर रहा था कॉरेस्पॉन्डेंस से, Okay. तो मैंने HR में स्पेशलाइज कर लिया उसमें. अच्छा, हाँ, तो ये that छोटी was छोटी a- चीजों का आप ध्यान रख लेते वो हो. अलाइनमेंट थोड़ी हो जाती है. अब मुझे फिल्म स्कूल जाना था. मेरा मन था, लाइफ की एक एस्पिरेशन थी कि जब पैसे आ जाएंगे मुझे एक बार फिल्म स्कूल जाना है. हाँ. तो मैंने 3 महीने का एक्टिंग एंड प्रेजेंटेशन का वहां पे डिप्लोमा कर लिया कि ये मेरी ट्रेनिंग में भी हेल्प कर देगा. तो आप चीजों को अलाइन कर लेते हो, दे हेल्प यू. Makes a lot of sense. Great. अब इधर से हम चलते हैं ये समझने में, हिमेश, कि जब ये सारे डॉट्स तो कनेक्ट हो गए, आपने ये भी समझ लिया कि ठीक है,
आई एम गोइंग टू गो एड, आपने मैन पावर कंपनी ज्वाइन कर ली, उधर आप ट्रेनिंग्स देने लगे, एंड एज यू मैंशनड 2 साल बाद आफ्टर दैट जब आपने जॉब स्टार्ट कर दी उधर, एंड यू स्टार्टेड ट्रेनिंग अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो, when did the point come where you realize that I can build my own training programs now, do this alone without anybody else's identity, right? क्योंकि अभी तक तो सोटो से एक ब्रांड नेम था, आप उनके ट्रेनर थे और उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, काम वही था. ये कॉन्फिडेंस कब आया कि अब हिमेश मदान एज अ ब्रांड या एज एन इंडिविजुअल ट्रेन करेंगे लोगों को, एंड वील क्रिएट एन इम्पैक्ट वेर इन आई वुड वॉन्ट टू बी द इनेबलर एंड नॉट वॉन्ट टू बी डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स. यहाँ पे ना मैं उसी साइकिल में था जिसमें आई वुड से मैक्सिमम लोग रिलेट भी कर सकते हैं. जब आप बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट में फ्राइडे नाइट जब ओवर अ ड्रिंक बैठते हैं कि यार अपना कुछ करना है, थॉट तो होता है, थॉट तो होता है कि अपना कुछ करना है, करने का जो एक्शन परसेंटेज है वो बहुत कम होता है. तो मैं भी उस ब्रैकेट में था कि मन करता था कि मेरी इतना अच्छा इम्पैक्ट है, इतने अच्छे सेशंस होते हैं, मैं अपना क्यों ना कर लूं. मेरा एक मिनी ब्रांड कंपनी के अंदर बन गया, तो मैं अपना ब्रांड क्यों ना बना लूं. बट ये बहुत मुश्किल होता है, और स्पेशली जब आप एक जॉब छोड़ चुके हो, उसके बाद एक अटेम्प्ट कर चुके हो, उसमें आप फेल हो चुके हो और वापस जॉब में आए हो. अब तो ऐसा था मैं नहीं करूंगा, मैं आई एम हैप्पी, क्योंकि फाइनली एक गाड़ी जब का बजट बन गया, मैं गाड़ी ले सकता हूँ. अब मैं रिस्क क्यों लूँ, लाइफ में ऑलरेडी पीछे चल रहा हूँ, एक रिस्क ले चुका हूँ, और पीछे बैकग्राउंड भी ऐसी नहीं है कि प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं. तो अब इस एज में मैं अपनी लाइफ क्यों स्पॉइल करूँ, अब तो लाइफ जीने का टाइम आया है. तब क्या एज होगी आपकी? 23. Okay. Right. You were still very young. हाँ, बट तब 5 साल हो गए थे काम करते हुए, लग रहा था कि अब यही करना है, दोबारा पीछे नहीं जाना. क्योंकि कॉलेज को अगर मैंने छोड़ा तो मेरे लिए वर्क एक्स ही मेरा एसेट था. करेक्ट. तो इसको मैं खराब ना करूं. सो कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं मिल रहा था. एंड हमेशा ना किसी के बड़े एक्शन के पीछे बड़ी इमोशन होती है. वो बड़ी इमोशन नहीं थी, जैसे रॉकस्टार मूवी में था ना कि वो जब बड़ी इमोशन आई तो ट्रांसफॉर्मेशन हुई. गायक तो वो अच्छा था, ही वाज अ गुड सिंगर, बट इमोशन वाज मिसिंग. सिमिलरली आई वांटेड टू डू ग्रेट थिंग्स, जॉब छोड़नी है, अपना कुछ करना है, बट कोई इमोशन नहीं थी. नाउ दिस इंसिडेंट हैपेंड वंस आई वाज गोइंग टू डिलीवर अ ट्रेनिंग फॉर माय कंपनी ओनली. कंपनी की गाड़ी, कंपनी का शॉफर, मैं पीछे बैठा हूँ, लाइफ अच्छी चल रही है, और जाता हूँ एक अच्छे तरीके से, एक रेप्यूटेड कंपनी से रेप्यूटेड ट्रेनर आ रहा है, सब कुछ बढ़िया. सो आई वाज गोइंग टू अ कॉलेज टू डिलीवर ट्रेनिंग. उसी कॉलेज की बस मेरी गाड़ी के आगे आगे चल रही थी. ठीक है. एंड सडनली उस बस में से एक लड़का जंप करता है टू अटेम्प्ट अ सुसाइड. ओके. राइट. पीछे हमारी गाड़ी थी, आपकी गाड़ी पीछे, मेरी गाड़ी पीछे थी, आगे बस थी. उसी रास्ते जा रहे थे, वो भी कॉलेज ही जा रहे थे, सेम कॉलेज. तो ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, हम उतरे, बिकॉज हम ही सबसे पहले, हमने ही विटनेस किया, बस तो थोड़ी आगे थी. एंड लकीली कैजुअलिटी नहीं हुई, वो हम उसको सेव कर पाए. बोन फ्रैक्चर लग रहा था, खून निकल रहा था, काफी कुछ डैमेज था. तो उसको गाड़ी में बिठाया और नियरेस्ट हॉस्पिटल लेके जा रहे थे. उसके हाथ में एक पेपर था विच वाज अ सुसाइड नोट. ओके. राइट. आफ्टर गेटिंग हिम, जब वो अंदर था, डॉक्टर्स ने कहा ही सेफ कर रहे हैं, कॉलेज से कुछ लोग आ रहे हैं, सब हो रहा था. व्हाइल आई वाज सिटिंग आउटसाइड, आई रेड दैट नोट. ओके. दैट वाज द ट्रिगर मोमेंट कि जो मैं सिखा रहा हूँ, जो मैं साइकोलॉजी पढ़ के सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, जो मैं बोर्ड रूम्स में दे रहा हूँ, जो मैं एक दिन में 500-100 लोगों को हफ्ते में इंस्पायर कर रहा हूँ, इसकी मास लेवल पे नीड है. आई वेंट एंड रेड डेटा कि 1 घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है. राइट. तो ये सारी चीजें मेरा ट्रिगर बन गई, क्योंकि आपने आंखों के सामने जब देखा होता है ना, तो वो नोट जो था वो कई दिन मेरे कानों में चला. जो मैंने पढ़ा कि यार इतनी बड़ी बात नहीं थी, उसके लिए बड़ी बात थी, उनके लिए. हाँ. अगर मैं अपनी फैमिली का पास देखूं तो मुझे लग रहा था कि अगर मैं इससे शेयर ही कर दूं ना कि मेरे फैमिली ने क्या क्या देखा, तो उसको लगेगा कि ये स्टोरी ही काफी है, मेरे को वापस लाइफ अब कभी ये डिसीजन नहीं लेना. देन आई थॉट आई स्टार्ट शेयरिंग व्हाट आई लर्न. आई लर्न मोर, आई रीड मोर, सिंप्लीफाई इट, और लोगों तक पहुंचाऊंगा. दैट वाज माय ट्रिगर टू लीव द जॉब एंड स्टार्ट अ थिंग ऑफ माय ओन. एंड ऑल्सो कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि वो मेरा तरीका था मासेस तक पहुंचने का. इंस्पायरिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. एंड आई थिंक जैसे आपने बोला ना, जब आप अपने सामने कोई एक ऐसे लेवल की चीज देख लेते हो, उसका इम्पैक्ट दिमाग पे और आपकी मेमोरी पे एक बहुत डिफरेंट लेवल पे होता है. एंड देन लाइक यू सेड, यू नीड दैट ट्रिगर, इमोशन दैट ट्रिगर्स इट, विच हैज टू हैव इतना ज्यादा इम्पैक्ट कि आप फिर वो एक्शन लो, सिर्फ वो एक थॉट ना रहे फिर दिमाग में. बिकॉज लाइक यू सेड, थॉट तो बिगनिंग से ही थी कि खुद का कुछ करना है. यू ऑल्सो न्यू यू वर गुड एट इट, बट वो करेज तभी आता है जब वो इमोशन ट्रिगर होता है. आई मीन ऑब्वियसली इससे मुझे एक और चीज ये समझ में आई कि आपको ये तो समझ में आ गया कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट टू हैव द राइट माइंडसेट, बिकॉज पीपल
who go on to this stage or they come to that juncture कि इस कगार पे वो आ जाते हैं that they want to take their own life, उनको अगर पता चले दूसरों की स्ट्रगल्स के बारे में, आप अपनी जर्नी के थ्रू या स्टोरीज के थ्रू किसी को उस स्टेज से वापस लेके आ सकते हो, that's the true level of impact, which no amount of money can give you that happiness or give those results. Right. And till date, that is my biggest satisfaction. जब मैं comments पढ़ता हूँ ना, कि जो सोच के शुरू किया था, ये सब नहीं सोचा था. YouTube में जब लोग ही नहीं थे तो सोचा ही नहीं था कि फेम भी होगा. आज यूट्यूबर होना एक ग्लैमरस फील्ड है. 2017-18 तक कोई नहीं समझता था यूट्यूबर होता कौन है. राइट, एक रिगार्ड भी नहीं मिलता था इस काम को. तो तब पर्पस कुछ और थैंकलेस जॉब थी वो. तो अब ये सब बेनिफिट्स मिल गए, लेकिन रियल सेटिस्फेक्शन वो थी जो जिस रीजन से शुरू किया था, और आज भी वही है. मैंने रीड कमेंट्स के हाँ आज किसी ने अपनी लाइफ में डिसाइड किया कि कोई डिप्रेशन से बाहर आ गया, कोई एंजाइटी को डील कर पा रहा है. किसी ने ये लिख दिया कि आई वॉज थिंकिंग अबाउट सुसाइड बट आई वोंट डू. आई ऑलवेज कनेक्ट बैक कि मैंने इसीलिए शुरू किया था. वेरी नाइस. वो फुल सर्कल लाइफ सर्कल मोमेंट्स होते हैं. इसी के साथ आई थिंक हिमेश, जब हम बात कर रहे हैं अबाउट यू नो डिफिकल्ट टाइम्स, चैलेंजेस जो हर इंसान की जिंदगी में आते हैं, आई थिंक द लेवल टू विच पीपल कैन डील विद इट बहुत सब्जेक्टिव होता है. यू नो बहुत लोगों को कभी कभी लगता है यार ये इतनी छोटी सी बात पे इतनी टेंशन क्यों ले रहा है कोई, इतना स्ट्रेस होने की तो बात है नहीं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मुझे कुछ बताया, हो सकता है मुझे लगे मेरे लेवल पे यार ये तो कुछ बात है ही नहीं, इतना इसकी लोड लेने की जरूरत है ही नहीं. वाई एंड बट दैट थिंग इज लेट्स से कॉजिंग यू एंजाइटी. दैट कैन बी द केस. When you regularly have conversations आपके colleagues के साथ, पेरेंट्स के साथ, आपके पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, कोई भी है, एक बहुत बार एक डिस्कनेक्ट होता है, लाइक व्हेन यू सेड, जहाँ रिलेटेबिलिटी नहीं बन पाती बिकॉज द लेवल एट विच यूर कॉम्प्रिहेंडिंग इमोशंस एंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू हर इंसान के साथ मैच नहीं होता. जब आप ट्रेनिंग्स कर रहे थे अर्ली ऑन एंड इवन नाउ, what I want to understand, when you're motivating people, telling them how to deal with life the right way, how to build a mindset, how to envision things and build a life for themselves that they've always wanted. While you're saying all of this, right now they're not there. Emotions एकदम उसके विपरीत और opposite चल रहे हैं. What do you think कि आपको ऐसा कभी हुआ as a trainer? I'm asking from a coach perspective, क्योंकि मैं बताती हूँ मेरे साथ ऐसा होता है. कभी कभी जब मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स, और जब मैं उनसे पूछती हूँ रीजन कि वाई यू वांट टू स्टडी इन अ पर्टिकुलर एक्स कंट्री, या ये वाला कॉलेज क्यों, ये वाला कोर्स क्यों, वो जो वाई का रीजन मुझे देते हैं ना, वो मुझे सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता, या वो मेरे मैथ्स में एडअप नहीं होता. राइट. और इनिशियली ऐसा होता था इन माई ईयर्स, फर्स्ट 2 years मैं बहुत चिढ़ जाती थी कभी कभी कि यार ये तो लॉजिक है ही नहीं. पर एज अ ट्रेनर यार आपकी जॉब ही वही है कि आप इसको असाइड रख के फिर भी उस इंसान की मदद कर पाओ. उस स्टेज तक आने में फिर बहुत टाइम लग जाता है, वेर यू डोंट लेट योर जजमेंट्स एंड इमोशंस क्लाउड द हेल्प एंड सोल्यूशन यू हैव टू प्रोवाइड. हाउ डिड यू ओवरकम दैट? बिकॉज ये तो और भी इन डेप्थ है, लाइफ और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है इसमें. ये आता है, और आई वुड से कि इवन बहुत ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद भी वो आएगा, क्योंकि एज अ ह्यूमन हमारी एक ओपिनियन होगी. नहीं होगी तो हम बहुत मैकेनिकल हो जाएंगे. करेक्ट. राइट. ऐसा नहीं हो सकता कि हम मैकेनिकल थॉट से ही सुने किसी को, पहले हमारा आएगा. करेक्ट. बट आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, और हर कोच करता है कि ओवर द ईयर्स हम वो डेवलप कर लेते हैं कि उसको आप ग्रेजुअली म्यूट करते हो एंड देन यू आर एबल टू रीच. करेक्ट. जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरे के लेवल पे पूरी तरह जाना. उसका एक बार मतलब इट इज नॉट 1 लाइनर 2 लाइनर में दूसरे को सुनना. जैसे आपने ये पॉडकास्ट शुरू ही ऐसे किया कि बचपन कैसा था, तो उसका बचपन कैसा था, जो भी आपका क्लाइंट, प्रोस्पेक्ट या ऑडियंस है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस थॉट से ये इस थॉट तक पहुंच रहे हैं, उसके शूज में जाके सोचना कि अगर मैं इसकी जगह होता तो कैसे फील होता. आई इनिशियली फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस, स्पेशली सेमिनार्स में, क्योंकि मैं 23-24 की एज में सामने बैठे हुए हैं सीईओज भी, और ये 22-23 साल का लड़का हमें सिखाएगा. हाँ. ये मेरे को भी बहुत आया है. मुझे तो लिंक्डइन पे पता है आपको वीपीज क्योंकि होते हैं, तो वो लिख देते थे बड़े बड़े कंपनीज के कि अब 22 साल की लड़की हमें सिखाएगी कि रेज्यूमे कैसे बनाते हैं और इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं. ऐसे कमेंट्स आए हैं तब बहुत. पर लगता है थोड़ा इफेक्ट तो होता ही है ना. पर बट यही चीज ट्रेनर के लिए ना बेस्ट चैलेंज होती है, क्योंकि ये अनलॉक कर लिया. तो शुरू में बहुत प्रॉब्लम आती थी, राइट. लेकिन अब इतना एक्सपीरियंस हो गया, तो उसके बाद कि मैं खड़े होता था, मैं देखता था ये 10-12 लोग जो आगे बैठे हैं ना, इनके माइंड में चल रहा है हमें सिखाएगा. 15 मिनट बाद ये कहेंगे ये हमें सिखाएगा. वो स्टेज पे वो कैसे उनकी आइस ब्रेक करनी है, कैसे उनके मोटिवेशन को समझना है, उनके नेक्स्ट गोल्स को समझना है,
ये रियलाइज कराना है कि आज भी लर्निंग व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू हैव रीच्ड हियर बिकॉज ऑफ योर क्वालिटीज, दैट इज लर्निंग। Right. तो ये सेशन भी उस क्वालिटी में ऐड करेगा। करेक्ट। तो फिर वो 10-15 मिनट में हर ट्रेनर को आइस ब्रेक करनी आनी चाहिए कि कैसे अपनी ऑडियंस को एक लेवल पे लाना है। करेक्ट करेक्ट। एंड जैसे क्योंकि हम बात कर रहे हैं अबाउट ट्रेनिंग एंड एड्रेसिंग लार्ज ऑडियंसेस, पब्लिक स्पीकिंग आज एक ऐसी स्किल है, लाइफ स्किल बुलाती हूँ मैं तो पब्लिक स्पीकिंग को। लोगों को लग रहा होगा यार अगर मुझे कभी स्टेज पे जाना ही नहीं, मुझे बस अपनी एक रेगुलर जॉब करनी है, तो मुझे क्यों सीखना चाहिए। नॉट दैट आई एम फोर्सिंग एनीबडी, बट मुझे लगता है आप कुछ भी कर रहे हो, 10 लोगों के सामने बोलना आना इज अ लाइफ स्किल टुडे, जिस तरीके की दुनिया में हम रहते हैं। अब आपका तो बचपन से ही, गोइंग बैक टू द स्टोरी, आपको स्टेज पे जाना था, परफॉर्म, थिएटर किया आपने, बहुत सारी चीज़ें, अपनी ट्रेनिंग की। अगर हम ऐसे इंसान की बात करें जो बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्टेड हैं, मोर देन इंट्रोवर्टेड, वो भी अगर हम साइड पे हटा दें, दे वॉन्ट टू टॉक टू पीपल, बट लेट्स से सम थिंग्स हैव हैपेंड इन देयर पास्ट बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट ओके विथ टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल। कुछ लोगों के बहुत सारे स्कार्स होते हैं, इश्यूज होते हैं। जैसे मेरा जो पिछला एपिसोड भी लाइव गया था, उसमें मैंने संदीप गुप्ता सर को इंटरव्यू किया था। वो आज पब्लिक स्पीकिंग करते हैं और GMAT, ही इज अ GMAT ट्रेनर, राइट, एशियाज लीडिंग GMAT ट्रेनर। अब वो 9 साल तक या 10 साल तक एक वर्ड नहीं बोल पाए थे गेस्ट के सामने बिकॉज ऑफ अ स्कार फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। ये मुझे पता चला। जब इतनी लंबी कोई चीज़ चलती है और पर किसी को करना है, उनको जाना है स्टेज पे, वो अंदर वो चीज़ है, हाउ कैन somebody overcome and come out of that shell and mindset and still pursue and do something like this, जहाँ पे उनको पता है लोगों के ओपिनियंस तो आएंगे। अगर आप पब्लिक में बात कर रहे हो, आई एम श्योर आज भी अगर आप हिमी स्टेज पे जा रहे हो, नॉट ऑल 500 पीपल लाइक यू, यू नो दैट, नॉट ऑल 500 पीपल विल अप्रिशिएट यू। एक ट्रेनर को उस माइंडसेट के साथ ही जाना होता है कि सब मेरी नहीं सुनने वाले हैं, या सबको उस लेवल पे चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो वो सब के साथ डील करना और फिर भी वांटिंग टू गो टू द स्टेज, डिलीवर वैल्यू एंड स्पीक अप इन फ्रंट ऑफ पीपल, वो बैरियर कैसे ओवरकम करे कोई इंसान जिससे नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। इसमें ना जो मैं बताने लगा हूँ ये बहुत ट्राइड टेस्टेड है, इसलिए कह सकता हूँ कि मैं 1 साल पहले ट्रेनिंग नहीं शुरू करी। करेक्ट। तो जब मैंने 10-12 साल पहले लोगों को कोच करना शुरू किया, अब मेरे पास उनके रिजल्ट्स हैं। राइट। तो मैं ये आउट ऑफ रिजल्ट्स जो सबसे बेस्ट वर्क किया उस चीज को मैंने ज्यादा सिखाना शुरू कर दिया और उसके ज्यादा रिजल्ट्स हैं। आई कॉल इट एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी। ओके। पहले हम आ जाते हैं उस बात पे जो आप कह रहे थे कि बचपन के बिलीव्स को समझना, राइट। थेरेपी से पहले हमेशा हमें रूट समझना है। करेक्ट। एब्सोल्युटली राइट। ये सब बचपन में ही हो चुका होता है, जो फियर आ चुका होता है, अदरवाइज कोई चैलेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल क्लास में हमें भी नहीं याद होगा, इतने छोटे होंगे कई बार, कि हमने हाथ खड़े करके कुछ बोलने की कोशिश करी। जितनी एज के हम थे उतनी एज के हमारे क्लासमेट्स थे, उनको भी समझ नहीं थी, वो हंस पड़े। टीचर्स भी उस टाइम पे इतने कॉन्शियस से सेंसिटिव नहीं थे, कुछ गलत बोल दिया वो भी हंस पड़े। और इस बेचारे एक नादान माइंडसेट पे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे क्या असर पड़ा कि जब तुम बोलने की हिम्मत करते हो लोग हंसते हैं। एक नेगेटिव प्रिंट बन गया उसका, राइट। हमने 4 दोस्तों में कुछ बोला, वो भी नादान, हम भी नादान, हम अच्छा बोले नहीं, उनको अच्छा समझ नहीं आई, हंस पड़े, मजाक उड़ गया। एंड ये इस तरह के एक्सपीरियंसेस हमें बचपन में ये क्लियर कर देते हैं कि लोगों के सामने बोलना मतलब मजाक उड़ सकता है, ये डर का काम है, लोग जज करते हैं और यही वैलिडेशन का तरीका है और हम कॉन्शियस भी हो जाते हैं। Correct. इसलिए इतना हुआ बन जाता है, इतना फियर बन जाता है पब्लिक स्पीकिंग का, क्योंकि चाइल्डहुड में ये चैलेंज आ जाता है। तो जिसके साथ नहीं होता उसके साथ भी एक्सपोजर थेरेपी हुई होती है। अच्छा। मेरे मदर ने, मैं शायद नर्सरी या फर्स्ट क्लास में हूँगा, तो मुझे स्टेज पे चढ़ा दिया। शी वॉज अ टीचर इन द सेम स्कूल, राइट। और सिख स्कूल है तो हमें प्रेयर बोलनी होती है, राइट। तो मुझे प्रेयर याद कराई जो मैंने भूल गया जाके स्टेज पे, ब्लैंक हो गया। सारा सामने खड़े हैं स्टूडेंट्स, मैं ब्लैंक हो गया। लकीली नर्सरी था, राइट। तो कई मौके और मदर ने ऐसे दे दिए, 2 बार 3 बार चढ़ा दिया, पीछे से बोल दिया। सब स्टूडेंट्स के लिए ऐसे ही होता था, जो भी छोटा बच्चा परफॉर्म करेगा भूलेगा। बट वो मेरे को एक्सपोजर बहुत अर्ली दे दिया कि जो मेरा वो डर खत्म होने थे वो 3, 4, 5 बार में खत्म हुए एंड मैं कंफर्टेबल हो गया। 6th क्लास तक आई वाज रेगुलर ऑन स्टेज, राइट। नाउ एट एनी एज वी हैव टू डू द सेम थिंग, वी हैव टू गिव आवरसेल्व्स एक्सपोजर। बट इस एज में सीधा स्टेज पे जाने की हिम्मत होगी नहीं, अगर मैं बोलूंगा तो सिर्फ कहने की बात होगी, करेक्ट। सो द एक्सपोजर ऑलवेज स्टार्ट्स एट अ वेरी स्मॉल लेवल। अ स्मॉल लेवल कैन बी कि आप कभी किसी इवेंट में ही नहीं गए जहाँ पे लोग बोल के स्टेज पे खड़े होके बोल रहे होते हैं, आपने फिजिकली की भी अटेंड ही नहीं किया, तो पहला स्टेप ये नहीं है कि आपको स्टेज पे चढ़ना है। पहला स्टेप है उस हॉल में जाके बैठना है, ऑब्जर्व करना है लोग क्या बोल रहे हैं, उस एनवायरनमेंट के अंदर खुद को
ढालना है. Do it for 2 to 3 times, exposure 1 done. It is a syllabus. Correct. Right? एक levels Chapter है. 1 done. हाँ. Chapter 2. हाँ. आज आपने सिर्फ ये लास्ट टाइम आपने देखा कुछ लोगों ने हाथ खड़े करके क्वेश्चन पूछा था. आपको सिर्फ हाथ खड़े करके सवाल पूछना है. हाँ. इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना. इतनी तैयारी करके आ जाओ. इतना ही सिलेबस है. करेक्ट. भूल जाओ कि एक दिन स्टेज पे जाना है. हाँ. 3-4 बार आपने हाथ खड़ा किया ना तो आप पिछले वाले से एक स्टेप आगे चले गए हो. करेक्ट. राइट. देन प्रोबेबली अ वेरी स्मॉल गैदरिंग, 5 लोगों में 2 लाइन बोलने की हिम्मत करनी है. तो ये छोटे छोटे, एवरी टाइम इट विल बी अनकंफर्टेबल, एवरी टाइम यू विल बी फाइटिंग योर लिमिटिंग बिलीव्स, बट स्टेप बाय स्टेप आप आगे हो. एंड यू मे फेल आल्सो. यू विल फेल. हाँ. करेक्ट. वैसे हम कहते हैं कि एक बार लोग हंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, बट देयर आई हैव सीन लोग इतने बुरे नहीं होते. हम बातें बनाते हैं. हाँ, मुझे लगता है हम ज्यादा ही वो. हाँ. हम कहते हैं 4 लोग, हम भी वो 4 लोग हैं. हम सब 4 लोग हैं. आपको भी 4 लोगों से प्रॉब्लम, मुझे भी 4 लोग. इट मींस हम ही है ना. करेक्ट. कोई और नहीं है. बात तो सही है. राइट. और हम बुरे हैं नहीं है. तो कोई बुरा नहीं है. एग्जैक्टली. तो हम ही डर रहे हैं, हमें ही फर्क पड़ रहा है. लोगों को याद भी नहीं रहता. आप स्टेज पे फंबल कर गए, आप जिंदगी भर याद रखोगे, सामने वाले को नहीं याद है. मैंने ऐसी ऐसी गलतियां स्टेज पे करी हुई हैं कि आज भी मुझे याद होंगी. हाँ. जाके ऑडियंस को, अबे तू कब आया था, कब बोल गया, कब ये गलती कर गया, हमें क्या याद है, हम क्यों याद रखें. राइट. आप दूसरों की कितनी बातें याद रखते हो? नहीं रखता है, अपनी ही रखते हो. सो दीज आर योर fears. You are conscious. People are not judging you. They don't take you so seriously. Yes, we as take much ourselves. as we take ourselves. We should take ourselves seriously, but let's not form opinion कि they also do. Correct. तो अपने को वो exposures देने हैं, छोटे छोटे exposures देने हैं. यही किसी भी फियर को खत्म करने का तरीका होता है. यही थेरेपी साइकोलॉजिस्ट भी यूज करते हैं. चाहे आपको फ्लाइट का फियर है तो पहले आपको सिमुलेटर्स में बिठाया जाता है. राइट. चाहे आपको डॉग फियर है तो पहले डॉग आपसे दूर थोड़ी देर एक दिन रखा जाएगा, फिर थोड़ा पास, फिर थोड़ा पास, फिर एक ट्रेन डॉग आपके आसपास जो आपको टच भी नहीं करेगा. एंड ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू टच द डॉग एंड ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू फाइट द डॉग. राइट. और आपने जो भी बोला, इससे जो टेक अवे मैं ले रही हूँ और ऑडियंस भी लेगी इज, नंबर 1, इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट. एब्सोल्युटली. It will take time. You will still maybe get embarrassed or you will feel like मेरे से नहीं हो पाएगा. Let that feeling sink in, but don't stop. Yes. And जो मेन चीज आपने बोली, लेवल वाइज कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है कि ये हो गया तो ये ठीक हो जाएगा. टेक थिंग्स एट अ स्लो पेस एंड एज यू सेड, एक्सपोजर को हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ एंड देन यू रीच दैट समिट. राइट. एब्सोल्युटली. एंड देन यू विल बी सुपर थैंकफुल टू योरसेल्फ. करेक्ट. आपने एक लौती जिंदगी में एक इतनी इंपॉर्टेंट स्किल सीख ली, तो आपको उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, आप बाकी एक्सपोजर थेरेपीज बहुत जल्दी कर लोगे. करेक्ट. वो फिर इजी होता जाएगा विद टाइम. नो, वेरी इंटरेस्टिंग. एंड आई थिंक इसको अगर लोग यूज कर पाएंगे इन द राइट वे, अप्लाई कर पाएंगे मोर देन जस्ट लिसनिंग टू इट, देन थिंग्स विल स्टार्ट ट्रांसलेटिंग एंड यू कैन सी देम एक्चुअली हैपन इन फ्रंट ऑफ यू. एंड एक छोटी सी चीज ऐड करता हूँ. आज की डेट में हॉल में जाने से भी एक इजी चीज है सबके पास, वो है सेल फोन. इतना ही कर लो कि अपना फोन का कैमरा ऑन करके रोज 5 मिनट बोलो. लोग इसमें भी लोगों को फियर होता है. अपने ही कैमरे को, जिसको कोई जज नहीं कर रहा, जो फाइल आप कटक करके डिलीट कर दोगे, जिसमें आपने गलत बोल दिया, करने को भी नहीं बोल रहे. हाँ, बस अपने फोन की गैलरी के लिए शूट कर लो. आप 10 दिन वही कर लोगे ना, फर्स्ट डे से 10th डे बेटर होगा. एंड देयर इज नो जजमेंट. करेक्ट. नो पीपल, नो रिस्क. हाँ, सही बात है. दिस इज द बेस्ट एक्सपोजर टू स्टार्ट विद. आई एग्री. अग्रीड. नहीं, एकदम सही बात है. एंड यू नो, जब आप ये सब बता भी रहे थे, आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि ट्रेनिंग्स तो आप करने लगे थे एंड यू हैड ऑल्सो कम टू दैट लेवल जहाँ आपको लग रहा था कि भले ही जो फ्रंट रो में बैठे हुए लोग हैं या सोच रहे हैं कि ये मेरे को क्या सिखाएगा, पर मुझे पता है कि क्या होने वाला है. बाय द एंड सब सही चल रहा है. तो ऑफलाइन ट्रेनिंग्स देने से टू कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज एंड दैट किक दैट इट वाज गिविंग यू, इम्पैक्ट भी दिख रहा है, मोटिवेशनल स्पीकिंग शुरू हो गई है, सब चल रहा है. अब कंटेंट क्रिएशन कहाँ से आ गया इसमें? व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज योर केस इज स्लाइटली डिफरेंट. पीपल जनरली गो फ्रॉम ऑनलाइन टू ऑफलाइन. आप ऑफलाइन ट्रेनिंग्स कर रहे थे और इतने ज्यादा लोगों के साथ इन पर्सन लाइव कर रहे हो. इसमें रीटेक नहीं होता है ना, एक टेक होता है. जो गलती हुई वो हुई. सो आपको ये थॉट प्रोसेस कैसी आई कि अब इतने लोगों के सामने बोलिए, अब एक कैमरा के सामने बोलना है? राइट. हाउ डिड दैट हैपन? सो जब वो इंसिडेंट हुआ था, जब मेरे माइंड में आया था कि मुझे मासेस तक अपनी बात पहुंचानी है, तो उस वक्त मैंने ये ऑब्जर्व किया कि तरीका क्या होगा. मैं 1 महीने में अगर सेशंस करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, सब करता हूँ, तो एक लेवल पे मैं 2-2.5 हज़ार लोगों की हेल्प कर पाऊंगा. और जो मेरी मिशन है वो ज्यादा बड़ी कैसे हो सकती है. नॉट 2012 इट वाज वेरी फुलिश आल्सो टू थिंक के आप इंटरनेट पे जाके कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेट लोगों के पास है ही नहीं. इंटरनेट पेनिट्रेशन 8% और यूट्यूब पेनिट्रेशन 1%. मतलब वीडियो कंजप्शन पूरे भारत की पॉपुलेशन का 1% करता था, जो शायद आज 40-50% पे हम पहुंच चुके हैं. राइट. 1% was very small number. Very, very small. But
मैं एक चीज हमेशा देखता था कि जो यूएस में होता है उस टाइम पे 5 साल बाद इंडिया में होता था। ये मुझे ट्रेंड नजर आता था। करेक्ट। और यूएस में लिली सिंह वाज वेरी पॉपुलर, जस्ट रेन वाज वेरी पॉपुलर। हम कैनेडियन और अमेरिकन यूट्यूबर्स को देखते थे, वही एग्जिस्ट करते थे बिकॉज यूट्यूब के ओरिजिन भी यूएस से है। तो और उनका इंटरनेट फास्ट था, उनका डेटा कंपैरेटिवली चीप था। तो मुझे नजर आया कि जो वहां हो रहा है यहाँ भी होगा। तो 2, 3, 4 साल में वो वेव आपको नजर आने लगी थी। एंड दिस इज द टाइम जब आई थिंक AIB भी नहीं आया था। नहीं, हाँ, आई डोंट थिंक 2011 में मैंने अपनी 3-4 वीडियोस डाली थी पूरे साल में। एंड 2012 में मैं रेगुलर हुआ था। 2012 में AIB आया था। तो ये 2-4 चैनल्स जो स्टार्ट हुए 2012 में ही मैक्सिमम लोगों का स्टार्ट हुआ। तो शायद ये वेव कुछ ही लोगों ने कैप्चर कर प्रेडिक्ट किया। कैप्चर तो कर ही नहीं सकते थे उस टाइम। सो मुझे लगा कि दिस मे बी टुमारो, मे बी अ ईयर डाउन, मे बी 2 years डाउन, दिस इज द ओनली वे आई कैन रीच टू मैनी पीपल। आज इसमें रेवेन्यू नहीं है तो मेरा एज अ ट्रेनर मैं असाइनमेंट्स करता रहूंगा फ्रीलांस में। जो मेरी सैलरी आ रही थी उसका हाफ मीट करने की कोशिश करूंगा थ्रू फ्रीलांसिंग। एंड हाफ मैंने अपना कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। कोई बात नहीं, हाफ पे रहना पड़ेगा क्योंकि यूट्यूब से एक्सपेक्टेड ही नहीं था। पूरे साल में शायद 60-70 रुपए आए थे मेरे। तो 60-70 रुपए इतना ही होगा शायद। $1 ही शायद आई रीच्ड 6 months में। आई थिंक आई रीच $3-4-5 और उस टाइम 50-55 रुपीज का डॉलर होगा। तो मे बी आई थिंक इफ आई रिमेम्बर क्वार्टर में, पहला क्वार्टर तो $1-2 ही था। आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट। अब ये नजर आ जाएगा एनालिटिक्स में जाके। $1-2 और व्यूज भी नहीं होते थे ना। 1000 व्यूज वाज लाइक अचीवमेंट उस टाइम पे। मतलब हम 150-200 व्यूज ही हमारे लिए होता था कि वीडियो कंसिस्टेंट है। करेक्ट। तो दैट वाज अ टाइम कि जो पर्पस स्टार्ट हुआ कंटेंट क्रिएशन में, मैं क्यों आया ऑफलाइन से ऑनलाइन क्यों आया, वो ये रीजन था। साथ में एज अ ट्रेनर मेरा ब्रांड भी बिल्ड होना शुरू हुआ। राइट। तो जिसको आज मैं PVP कहता हूँ, लोगों को करियर चूज करने के लिए PVP यूज करना चाहिए, मेरा वो बाय चांस अननोइंगली यूज हुआ। आई वांटेड टू सर्व पीपल, ये मेरा पैशन था। लोगों को इसकी जरूरत है मुझे क्लियर था। तो वैल्यू टू मार्केट प्लेस था। एंड आने वाले टाइम पे इसमें एज अ ट्रेनर मुझे असाइनमेंट्स और ज्यादा मिलेंगी तो प्रॉफिटेबल भी हो जाएगा। क्योंकि एड रेवेन्यू, ब्रांड डील्स, एफिलिएट मार्केटिंग ये सब एग्जिस्ट नहीं करता था। मेरे को सिर्फ इतना था मेरा ब्रांड इतना बन जाए कि कोई मुझे सेशन के लिए बुलाए। अभी मैं 500 रुपए लेता हूँ एक दिन का, तो मैं एटलीस्ट 2500-5000 रुपए लेने शुरू कर दूं। करेक्ट। सो दैट वाज माय गोल कि यूट्यूब से मेरा इतना उधर पैरेलल साइड बिल्ड हो जाए कि महीने की 4-5 असाइनमेंट करूं, 15-20 हजार आ जाए और मैं बाकी टाइम कंटेंट क्रिएशन पे दूं। सो दिस इज हाउ आई डिड दिस ट्रांजिशन। इट वाज अ कॉम्प्रोमाइज। मैंने गाड़ी लेनी थी, वो सारी सेविंग मैंने बेसिकली घर पे दे दी कि अगले 12 महीने की मेरी ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो जो भी मैं अमाउंट घर पे देता था वो मैंने 12 months के एडवांस में दे दी फादर को कि मैं 1 साल के लिए रिस्क लेने जा रहा हूँ। अगर 1 साल में मैं कुछ नहीं कर पाया और 1 साल बाद जो 13th month की कॉन्ट्रीब्यूशन की टाइम आ जाएगा, आई विल गो बैक टू द जॉब। Okay. So 12 months was my time. This was the third time, ना? This was third time. जिगरा चाहिए होता है इसके लिए, बहुत guts चाहिए होता है। क्योंकि कंट्रीब्यूट भी करना जरूरी था तो मुझे वो सारा सेविंग उधर दे दिया। करेक्ट। अब उस टाइम पे फोन से शूट नहीं कर सकते थे, कैमरा लेना भी जरूरी था। तो EMI पे कैमरा लिया। इन शॉट नहीं होता था, फोन से एडिट नहीं कर सकते थे। तो एडोबी का मुझे चाहिए था तो मैंने लैपटॉप भी लिया। तो मेरी सारी सेविंग जो मैंने म्यूचुअल फंड्स अपने तोड़वाए थे वो आधे घर में चले गए और आधों से ये सब डाउन पेमेंट्स हुई और EMI सर पे आ गई। बेस्ट पार्ट था कि EMI सर पे आ गई क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं थी। अब तो करना ही था। अब तो जॉब 1 साल बाद ही तुझे करनी है, 1 साल तुझे EMIs भी निकालनी है और 1 साल के घर में पैसे भी दिए हुए हैं। अब इट वॉज द टाइम आई लॉक्ड माई सेल्फ इन द रूम सोनीपत में। एंड मेरा ये नीचे फ्लोर पे बेड होता था, बगल में लैपटॉप पड़ा होता था और पीछे एक हरा पर्दा और 200 वाट के बल्ब होते थे। दैट वाज माय लाइफ फॉर 1 year। वहां से उठा, एडिट किया, शूट किया, यही मेरा सर्कल चलता था, मैं ही करता था। और 1 साल तो मैंने कमरे से, आई थिंक मैं कोई ट्रिप नहीं, कोई कुछ नहीं, दोस्त, वो एज ऐसी 23-24, तुम्हारे आसपास के सब कमा रहे हैं, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई अभी ट्रिप पे जा रहा है, माइलस्टोन्स हो रहे हैं। और मैं एकदम कट ऑफ हूँ दुनिया से कि ये मेरा तपस्या फेज है। मैंने IIT के लिए तपस्या नहीं करी, मैंने IIM के लिए नहीं करी, मैं अपने इस पैशन के लिए करूंगा। सो दैट 1 year व्यूज नहीं थे, बट आई थिंक उसी ने मुझे विल पावर दी, उसी ने मुझे स्टेबिलिटी दी, उसी ने मुझे ग्राउंड दिखाई, उसी ने मुझे। कभी भी उस फेज के टाइम में मीश ऐसा लगा कि यू नो हाउ डू आई पुट इट, जैसे आपने बोला, बिकॉज इट्स नॉट इजी, जब आप लोगों को कितना भी कोई बोल ले कि मुझे फर्क नहीं पड़ता दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत तो इफेक्ट सबकॉन्शियसली कहीं सोचते ही हो आप। पीपल आर एंजॉइंग देयर लाइफ, दे आर अचीविंग थिंग्स, डूइंग थिंग्स, थोड़ा बहुत तो आपको सुनने में ही अगर आ रहा है, तब इतना सोशल मीडिया का भी अगर एक्सपोजर नहीं था। डिड इट एवर गेट टू यू, और आपको कभी नहीं लगा कि यार
दिस इज द थर्ड टाइम आई एम अटेम्प्टिंग टू डू समथिंग, वो यू नो एक नेगेटिव थॉट आती है दिमाग में कि अगर इस बार भी नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा. लगता था, बहुत ऑनेस्टली पूरा लगता था. हाँ. देयर हैव बीन डेज कि मैं बीच बीच में Naukri.com खोलता था कि आज मेरे प्रोफाइल पे क्या मार्केट वैल्यू है, अगर मैं वापस अप्लाई करूंगा तो क्या सैलरी मिलेगी. करेक्ट. लोगों की वजह से लगता था, क्योंकि रिजल्ट्स आपके पास है नहीं, आप जॉब छोड़ के बैठे हो. तो मेरे जो काफ़ी फ्रेंड्स थे जो मुझे बार बार कहते थे कि भाई तू अगर बोल ही लेता है कैमरे के आगे और तेरा यही शौक है तो किसी न्यूज़ चैनल में लग जा, तो हम तेरी कोई रेफरेंस दे दें. तो लोग एक पिटी फील करते थे या हेल्प करने की कोशिश वो करते एक अलग. थे. और ये तो 1 साल मैं बता रहा हूँ जब कुछ नहीं था. उसके बाद भी ये जर्नी तो मेरी 3-4 साल चली, जब लोगों ने इस चीज को ना रिकॉग्नाइज किया ना इसमें पैसा था, ना समझते होंगे. आई एम अज्यूमिंग सबसे ऑड टाइम हो सकता है किसी के लिए भी व्हेन आई वांटेड टू गेट मैरिड. तो किसी ने अपनी बेटी को पढ़ा के इंजीनियर बनाया है, राइट. उसकी एक अच्छी सैलरी है, वो उसकी शादी एक यूट्यूबर से कर दे जिसके पास अभी पैसे भी नहीं है, जिसने अपनी सेविंग भी खत्म कर दी है, राइट. जिसका कोई फ्यूचर स्कोप भी नहीं पता, क्योंकि आज भी शायद एक यूट्यूबर पेरेंट्स कहेंगे कि यूट्यूबर बनना है, सोच लो. हाँ. और वो बोलेंगे जरूर कि 2-3 बार तो सोच लो. जबकि आज नजर आता है कि यूट्यूबर्स कमाते हैं, आज तो ज्यादा ही दिखा रहे हैं, सब हो रहा है, लोगों को पता है कि क्या अर्निंग्स हो सकती है. उस टाइम पे जब चैलेंजेस आए होंगे कि बात करनी, जाके अपने बारे में बताना, और वो उनको भी वो विजन दिखानी, अपने आप में एक अलग जर्नी रही. तो उनकी भी हिम्मत है कि उन्होंने ट्रस्ट कर लिया. हाँ, बहुत बड़ी बात है. सो इस तरह के मल्टीपल चैलेंजेस डेली लाइफ में थे. बट द पॉइंट इज यू आर नॉट सेइंग मुझे थॉट्स नहीं आई. थॉट्स आती थी, बट यू लर्न हाउ टू मे बी चैनलाइज देम और हाउ टू ओवरकम इट एंड स्टिल बी इन दैट पॉजिटिव माइंडसेट जोन कि कर लेंगे, जो भी है देख लेंगे, हो जाएगा. यही चाहिए होता है. मतलब आई वुड से कि बहुत शायद राइट स्टेटमेंट ही नहीं होगी कि किसी को नेगेटिव इमोशंस नहीं आते, या किसी को बुरा नहीं लगता, या किसी को डाउट नहीं होता. अगेन वी आर नॉट रॉबर्ट्स, वी आर ह्यूमंस. इमोशंस आर अ स्ट्रेंथ. बट कितनी जल्दी हम उसको समझ पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं, डील कर पा रहे हैं, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, वो है इमोशनल स्ट्रेंथ. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि सिर्फ ये मत सोचो बी पॉजिटिव, बी इमोशनली स्ट्रांग. हर चीज को नहीं कुछ नहीं होगा, हो सकता है, मैं इमोशनली स्ट्रांग हूं, मैं डील कर लूंगा. वो हिम्मत होनी चाहिए. करेक्ट. वेरी वेरी वेल सेड. आई थिंक इसके साथ आते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज पे. अब हमने यूट्यूब में ट्रांजिशन तो कर लिया, हम समझ गए आपने कंटेंट क्रिएशन की अपनी जर्नी एकदम आइसोलेटेड वे में शुरू कर दी, एक क्लोज रूम में, नो इक्विपमेंट, जितना था जो जिससे बल पड़ा यू स्टार्टेड. आपको ये कब दिखने लगा या आपको समझ में आया that this can be a full-time profession? Because even today, while obviously like you said, अब तो बहुत लोग समझते हैं और करते भी हैं. Back in 2012 or 13 to have that vision कि I will pursue YouTube full time, right? और इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं, वो सोचना ही बहुत बड़ी बात होती है. तो आपको ये कब समझ आने लगा that what can be the avenues of monetization from this, and why is it that people would want to work with me? I am asking from a brand standpoint, from company standpoint, I don't know whether it's affiliate marketing या जितने भी आपको channels दिखने लगे कि इनके थ्रू yes मुझे एक इनकम आ सकती है और ये मैं फुल टाइम कर सकता हूँ. जो मैंने नोइंगली अननोइंगली किया, एंड मैं इसी तरीके से आंसर करूंगा कि हर डायमेंशन के लोगों के ये काम आ सके. सिर्फ अपनी जर्नी शेयर नहीं करूंगा, करेक्ट, इस तरीके से करूंगा कि अननोइंगली या नोइंगली मैंने पर्सनल ब्रांड ज्यादा बिल्ड किया है. मैंने कंटेंट क्रिएशन व्यूज पे कम फोकस किया है. ये शायद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए वर्क कर गई. शुरू में अननोइंगली, अब नोइंगली. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें सब्सक्राइबर, व्यूज और चैनल बनाना है. इवन देयर कैन बी चैनल्स जिनका फेस ही नहीं है, उनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. देयर कैन बी चैनल्स जिन्होंने कोई भी टॉपिक जो चल रहा है वो बनाया, बट उससे उनका पर्सनल ब्रांड नहीं बना. जब आपका पर्सनल ब्रांड बन जाता है तो आपके मोनेटाइजेशन के एवेन्यूज कई सारे खुल जाते हैं. मेरे लिए बिकॉज पर्सनल ब्रांड साथ साथ बिल्ड हो रहा था, तो मुझे कॉन्फ्रेंसेस से इन्विटेशंस आने शुरू हो गए. मुझे समझ आया कि ये मेरा एक पैरेलल इनकम हमेशा रह सकता है, और बहुत टाइम तक वो मेरा मेजर इनकम था. यूट्यूब पे तो इनकम ही नहीं थी. जब 2016-17 जियो आया तो उसके बाद एड रेवेन्यू भी थोड़ा इंक्रीज होना शुरू हुआ, तो समझ आया कि हम इसका बैलेंस भी बना सकते हैं. करेक्ट. 18 के आसपास ब्रांड डील्स आनी शुरू हुई और कोविड के टाइम पे और इंक्रीज हो गई. तो समझ आया कि ये भी एक तरीका है काम करने का. इसी टाइम पे एफिलिएट भी आने शुरू हो गए. बट ये सब क्यों हुआ मेरे साथ? क्योंकि पर्सनल ब्रांड सेंटर में था. लोगों का एक कनेक्ट बना, क्योंकि मैं एक मिशन और एक विजन से जुड़ा रहा. मैं बार बार हॉप नहीं किया. मैंने ट्रेंड्स पकड़ के सिर्फ टुडे आज ये टॉपिक पकड़ लेते हैं, आज कुछ और पकड़ लेते हैं, ये नहीं किया. ये सारी चीजों ने, क्योंकि मिशन मेरा शायद
पर्पस स्ट्रांग था, Purpose, इसलिए हो हाँ, गया मेरे से। हाँ। वही कह रहा हूँ, अननोइंगली हुआ क्योंकि पर्पस स्ट्रांग था। वाई क्लियर Why clear था। स्टार्ट क्यों किया? हाँ, बट अब अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा नोइंगली मेक श्योर कि आप एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलो, शॉर्ट Right. टर्म मत चलो कि आज किससे मेरे व्यूज आएंगे, किससे सब्सक्राइबर आएंगे। अगर आप एक पर्सनल ब्रांड पर्सपेक्टिव से करते हो तो आज आप स्टार्टअप में हो, आप फंड रेज कर रहे हो, आप फंड इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जॉब प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हो मार्केट में, आप कोई सर्विस इंडस्ट्री में हो, आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, इफ यू आर एट सेंटर दिस विल हेल्प यू इन मेनी वेज, राइट, राइट? एंड ग्रेजुअली आप जो भी क्रिएट कर रहे हो उसको एक सेल्फ सस्टेन्ड ब्रांड बना सकते हो। करेक्ट। नहीं, वेरी वेल सेड। पर जब हम पर्सनल ब्रांडिंग की बात करते हैं हिमेश, आई डेफिनेटली हैव द सेम थॉट्स एंड आई रेजोनेट विद यू ऑन द फैक्ट कि एक जब आपकी एक पर्सनल आइडेंटिटी हो जाती है एंड पीपल स्टार्ट नोइंग यू फॉर समथिंग, यू नो, लाइक हिमेश मदान, राइट, मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूबर, ये दो वर्ड्स तो आते ही आते हैं आपके दिमाग में Right. नाम लेते ही। आपके नाम के साथ एक दो वर्ड्स या टैग्स जब तक अनकॉन्शियसली दिमाग में ना आए किसी बंदे के, व्हेन यू आर नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ देम, फिर मेरी डेफिनेशन है वो पर्सनल ब्रांड नहीं है, Yes, वो सिनोनिम्स बन जाने वो चाहिए। सिनोनिम्स बन जाने चाहिए, राइट? अब टू गेट टू दैट, बट जब हम बिकॉज आज पर्सनल ब्रांड, अब तो लोगों को आई थिंक पर्सनल ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस थोड़ी बहुत तो समझ में आती है, क्योंकि ये कोविड के टाइम से ये 4 सालों में इतनी पर्सनल ब्रांडिंग की बातें हुई हैं हर प्लेटफॉर्म पे। बट आज भी लोगों को ऐसा लगता है दैट पर्सनल ब्रांडिंग मीन्स ओनली ब्रांडिंग योर सेल्फ ऑन सोशल मीडिया alone or being present on a social media platform and continuously posting. There is a difference between creating content and personal branding. दोनों का एक sweet spot I think Right. common है, Right. पर वो अलग है। तो आप थोड़ा अगर break down कर सको कि what according to you is the true essence of personal branding and how is it different from just coming online and making videos? ये राइट, एब्सोल्युटली राइट कि पर्सनल ब्रांडिंग इज नॉट ओनली पोस्टिंग वीडियोस। Right. रतन टाटा जी की शायद महीने में एक पोस्ट आती है इंस्टाग्राम पे, हाँ। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सनल ब्रांड है। तो इसका डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, बट आज की डेट में फॉर एग्जांपल पहले अगर कोई न्यूज़पेपर में ज्यादा है और टीवी पे ज्यादा है तो वो ज्यादा रिकॉग्नाइज होता है, Right. क्योंकि दैट वाज अ मेजर कंजम्पशन हर किसी के पास है। आज की डेट में सबके पास जो मेजर कंजम्पशन है वो सोशल मीडिया है, Correct. फोन है। तो वहां पे अगर आपकी विजिबिलिटी ज्यादा है, अगर आपकी रीच ज्यादा है, अगर आपको लोग उससे ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, तो इट इज अ कैटलिस्ट और मे बी अ लैडर टू फास्टर पर्सनल ब्रांडिंग। बट इट डज नॉट जस्ट मीन पोस्टिंग कंटेंट। वहां पे वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपने भी बोली कि क्यों कर रहे हैं, सिनोनिमस वर्ड क्या बना रहे हैं। हाँ। आज अगर कोई ट्रेंड आ रहा है और उस पर मैं डांस करना शुरू कर दूं, और कल कोई ऐसा जोक आ रहा है जो मैं एक्ट करना शुरू कर दूं, तो लोग मुझे किस रीजन से फॉलो करें लोगों को क्लियर नहीं नहीं होगा होगा, हाँ। कि ये एंटरटेन करने के लिए आया है या वेल। तो मेरा मेजर कंटेंट विल डिसाइड कि मैं कभी कभी फन डाल सकता हूं, लेकिन Correct. मेरा 70-80% कंटेंट जो है वो मेरा सिनोनिमस वर्ड बना रहा है। Right. और अगर वो कंफ्यूज्ड है, हाँ, इफ माय आउटपुट ऑफ कंटेंट इज कंफ्यूज्ड, हाँ। इट मींस द ब्रांड पोजीशनिंग इज It's कंफ्यूज्ड। confused, yeah. फिर तो जो पर्पस था वही फिर फेल हो गया and it's not being met. और ये चीज मैंने एक टाइम पे तब रियलाइज करी थी जब फैन फेस्ट होना शुरू हुआ, अवार्ड्स YouTube होने के, शुरू हुए। हाँ। तो मैं देखता था कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनका मेरे से डबल ट्रिपल सब्सक्राइबर बेस है। इफ आई वाज एट से 4 मिलियन, दे हैड 10 मिलियन, 8 मिलियन। लेकिन उनको यहाँ नहीं बुलाया जाता, उनको स्टेजेस पे नहीं बुलाया जाता, उनको न्यूज चैनल पे नहीं बुलाया जाता। तो आई अंडरस्टूड कि नोइंगली अननोइंगली मैंने पर्सनल ब्रांड को हमेशा स्ट्रांग रखा है। हाँ। उन लोगों ने उस चीज पे काम नहीं किया तो उनको वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली। इससे ये भी आई थिंक एक लर्निंग मिलेगी कि लोगों को कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द नंबर्स, Yes. बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमने एक माइंडसेट बना लिया है कि सोशल मीडिया ग्रोथ इज इक्विवेलेंट टू नंबर्स। इट इज टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, बट नंबर्स के ऊपर भी उठ के एक ब्रांड वैल्यू अगर आप क्रिएट कर पा रहे हो, उधर ही एक्चुअल गेम है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके तो अब तो सबके सामने ऐसे एग्जांपल्स, आई वुड से कि ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिनका सब्सक्राइबर बेस मेरे से बहुत कम है, लेकिन उनका ब्रांड वैल्यू मेरे से बहुत स्ट्रांग है, राइट? जिसने जिधर फोकस किया। करेक्ट। और ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे हैंडल्स हैं जो 1 मिलियन पे होंगे, लेकिन उनका इमोशनल कनेक्ट 10 मिलियन 15 मिलियन वालों से ज्यादा है। ज्यादा है, हाँ, ऑब्वियसली। सो वो कनेक्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। अब तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि if you look at 5 or 6 years from now versus now, at least from just a YouTube or a content creation standpoint, audiences इतनी smart या I would say aware हो गई हैं that they are not just following somebody because somebody has X million followers.
जब तक रिलेटेबिलिटी नहीं आती या वैल्यू क्रिएशन या कुछ उनको उस बंदे में या इंसान में नहीं दिख रहा है दैट आई वुड गेट समथिंग आउट ऑफ दिस एंड आई ट्रूली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ देयर जर्नी, लोग नहीं जुड़ते हैं। ये तो यू कैन से और ये मैं कहूंगा कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये प्रिंसिपल्स हैं, ये फंडामेंटल हैं, ये आज से नहीं है, 1000 साल पहले भी यही थे। लोग जुड़ते हैं वैलिडेशन से, राइट, कि इसको सब फॉलो कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, उससे जुड़ सकते हैं। बट वो कनेक्ट तब बनता है जब आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो। करेक्ट। कोई भी रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर हमारी हिस्ट्री में तब लीडर बना जब उसकी बातों ने लोगों की जिंदगी बदली। सिर्फ इसलिए नहीं कि इसके पीछे बहुत लोग हैं, दैट इज वन गुड फैक्टर, इट इज, बट इट डज नॉट क्रिएट कनेक्ट, इट क्रिएट्स फॉलोइंग। Agreed. हम ह्यूमंस हम वैसे ही रहेंगे, भीड़ जिधर जा रही है हम जाएंगे, लेकिन फिर हमारा जो कनेक्ट बनेगा वो उस बंदे से बनेगा जिसकी वजह से भीड़ खड़ी है। ये हमारा डीएनए है, ये जेनेटिक्स है हमारे। ये ट्राइबल टाइम पे भी ऐसे ही थे। ये तो ऐसे ही रहा है। लीडर बनने के लिए देयर हैज टू बी सम डायरेक्ट इम्पैक्ट जो दिखे इंसान की लाइफ में। वेरी वेल सेड। अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में खुल के इंडिया में बात नहीं होती है, ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब कोई भी इंसान एक करियर, पैसे की बात हो, हाँ जी प्लीज पी लीजिए इससे पहले पानी हो जाऊं। नहीं, मैंने एक चीज नोटिस किया कि पहले शायद आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, मतलब ओपिनियन नहीं है मेरा, पर मैंने नोटिस किया है जब भी मतलब आप सिर्फ पेरेंट्स किसी से भी बात कर लो यार, इंट्रोड्यूस, जब आपको बोला जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, we mostly associate our introduction with our profession and what we do, and eventually that conversation comes to a point where लोग पूछे हाँ तो कितना कमा लेते हो, क्या हो जाता है इससे कितना, ये conversations पर जब होती हैं mostly people are not comfortable I'm not talking about how much they are earning, how they are earning, what they are earning, also people want to gatekeep. मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रही हूँ कि जब the youth, right, people let's say between the age of 18 to let's say 25 are making career decisions, या वो उस फेज में जब सब हासिल कर रहे हैं, माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं, किसी को रियलाइज हो रहा है यार ये जो जॉब ली थी 5 साल कर ली, ये करना ही नहीं था। सो पीपल आर इन डिफरेंट फेजेस ऑफ देयर लाइफ, बट इन एवरी फेज मनी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और कुछ लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन, जैसे आपकी स्टोरी थी, इन माई स्टोरी ऑल्सो, आपके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपके पास बैकअप नहीं है, आपको करना ही है, पर आपको फिर करियर चॉइस भी सही करनी है। अगर एक ऐसा पॉइंट आ जाए जो आपको रियलाइज हो जाए मेरी कॉलिंग इधर है पर इधर पैसे उतने नहीं हैं, लोगों को कन्विंस कर पाना या अपने फैमिली मेंबर्स को ही कन्विंस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। What I'm trying to understand is that today when you tell people I want to become a YouTuber, आप substantially इसको बैकअप कर सकते हो डेटा के साथ, लोगों के एग्जाम्पल्स दे सकते हो, ये देख लो इन लोगों ने किया है, अगर मैंने कर लिया दिस इज द पोटेंशियल। वो कन्विक्शन फिर भी इवन इफ आई पुट माई सेल्फ इन द प्लेस कि इफ आई बिकम अ मदर टुमारो एंड समबडी टेल्स मी दिस, शायद मैं मान जाऊँ। बट अगर आपके पास डेटा या प्रूफ नहीं है बट यू आर सर्टन कि पैसे मैं बना लूंगी या बना लूंगा, वो कन्विक्शन आप कैसे दिलाओगे टू योर पेरेंट्स और पीपल दैट आई स्टिल वांट टू डू दिस? बिकॉज मेरे पास जो क्वेरीज आती हैं 99% ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स वांट टू डू समथिंग एल्स, पेरेंट्स आर फोर्सिंग देम टू डू समथिंग दैट दे डोंट वांट टू डू। अब ऑब्वियसली आप ये नहीं बोल रहे हो कि आप पेरेंट्स के ओपिनियन को ही डिस्कार्ड कर दो या वो गलत बोल रहे हैं, बट करियर तो आपका है, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? 2 केसेस हमने डिस्कस करे, एक है जहां पे हम कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन उसमें पैसे नहीं है, एक है जहां पे हमें श्योर है आज नहीं तो कल, पेरेंट्स को नहीं समझ आ रहा लेकिन हमें लग रहा है कि हम इसमें पैसा बना लेंगे, जो है सिनेरियो 1, कि इसमें पैसे नहीं आएंगे बट मुझे पसंद है। इसके लिए सबसे पहले आपका मेंटल फ्रेमवर्क रेडी होना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी कम फाइनेंशियल्स के साथ बिताने के लिए रेडी हूँ। इमेजिन योरसेल्फ कि आपके आसपास के सब लोग एक अच्छे घर में रह रहे हैं, आपका नॉर्मल घर है, वो अच्छी गाड़ी ले रहे हैं, आपकी नॉर्मल गाड़ी है, या फिर शायद आपको लग रहा है कि इसमें गाड़ी भी नहीं है, राइट? आप उस सब आने वाले अगले 30 साल को अपना टाइम ट्रेवल करके देखो, आप कंफर्टेबल हो, आपको लग रहा है कोई रिग्रेट नहीं होगा, मुझे अभी भी यही करना है, तो फिर यू कैन गो हेड, राइट? क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट होता है, पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल है, पैसे को पूरा रिगार्ड एंड पैसे की वजह से ही लाइफ आगे चलनी है। तो आप किस पैसे पे प्रिपेयर्ड हो? फॉर एग्जांपल मैं कुछ ऐसे थिएटर आर्टिस्ट को जानता हूँ जिनको सिर्फ आर्ट से फर्क पड़ता है, उनको नहीं इस चीज, क्योंकि थिएटर में बहुत कम इनकम है, बट उनको वही करना है, देयर ओके लिविंग देयर लाइफ, उस लेवल का पैशन है। तो अगर वैसा है, कुछ सिंगर्स में आर्ट में ऐसे लोग बहुत मिल जाते हैं, और मैं काफी आर्ट के लोगों को मिलता रहता हूँ, तो मैं ऐसे लोगों को मिलता हूँ जिनको नहीं फर्क पड़ता कि हम बहुत बड़ी इनकम, बहुत बड़े गोल्स नहीं है, हमारे बेसिक्स मीट हो रहे हैं, हमें कोई दुनिया से लेना देना नहीं, हमें आर्ट को सर्व करना है। ये टेम्परामेंट है,
तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो मनी कम्स इनटू पिक्चर। अब सिनेरियो 2 जहां पे पेरेंट्स को नहीं क्लियर लेकिन आपको क्लियर है। करेक्ट। मैं ऐसे केसेस में, शायद आपने भी देखा हो बहुत बार, मैं ऐसे केसेस में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो सिर्फ 1 या 2 स्टेटमेंट्स बता देते हैं कि मैं ये करना चाहता हूं या चाहती हूं, मेरे पेरेंट्स एग्री नहीं करते, मैंने से व्हाट यू हैव डन, और उनको उनके करियर के ही क्वेश्चंस पूछ लेता हूं, तो उनके पास ही पूरी रिसर्च नहीं होती कि इसका 5 साल का होराइजन में क्या होगा, 1 साल में क्या होगा, इसके लिए क्या पढ़ना होगा, मेरा प्लान क्या होगा। दे डोंट हैव अ वेल रिसर्च थॉट, और आई वुड से एफर्ट नहीं डाला होता। तो अगर आप ही पूरी तरह से अपनी जर्नी को डिफाइन नहीं कर पा रहे, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो आपके पेरेंट्स, जो कि एक अलग जनरेशन से बिलोंग करते हैं, जिनका थॉट प्रोसेस अलग है और कंसर्न लेवल इमोशन से भरा हुआ है, वो उस चीज को समझ जाए जिसको आप ही समझ नहीं रहे हो, राइट? आई वुड स्टिल से कि बहुत सारे लोग एक फोन लेने में जितनी रिसर्च करते हैं, अपना करियर चूज करने में नहीं करते। तुम सही बात बोली, राइट? मतलब आई विल कॉल माय फ्रेंड, आई विल अंडरस्टैंड फीचर्स कैसे, तेरा एक्सपीरियंस कैसा है, मैं नेट पे जाके गुरुजी की वीडियोस भी देख लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। करियर के बारे में उतना टाइम, उतनी एनर्जी, देखो दिन कैसा होता है। अगर आप एक जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, जर्नलिस्ट का दिन कैसा है, आप सिर्फ टीवी पे बैठे एंकर को देख रहे हो, उसका पिछला जॉब क्या था, उससे पिछला क्या था। गर्मियों में, दिल्ली की गर्मियों में 12 बजे जब रिपोर्टिंग कर रहा था, व्हाट डिड ही और शी फील एंड व्हाई ही वाज एबल टू सस्टेन, वुड यू बी एबल टू सस्टेन इन दैट एनवायरनमेंट? लोग जाते ही नहीं है, राइट? जब आप वैसी ट्रैजेक्टरी बनाओगे ना कि पहला साल ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा एंड फाइनली आई विल रीच हियर, ऐसा एक कागज डॉक्यूमेंट बनाया होगा ना, तो आधे कन्विंस तो पेरेंट्स होंगे। मैं अभी भी नहीं कह रहा, कुछ पूरे हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे, लेकिन आधे तो होंगे कि यार दिस पर्सन इज सो सीरियस अबाउट इट, राइट? कुछ स्टेप्स तो आप आगे जाओगे, कन्विक्शन तो देखे, क्वेश्चंस तो बेटर आएंगे पेरेंट्स के, यहाँ तो नहीं बात रुकेगी नहीं करना, है ना? दे विल आल्सो हैव समथिंग टू थिंक, डिस्कस, देन यू विल आल्सो बी एबल टू टेल कि मैंने इससे बात करी थी, आप करो, इससे समझो, इससे मेरा प्लान बी क्या है, मेरा प्लान जेड क्या है। अगर मैं नहीं कर पाया, जैसे मैं था 1 साल नहीं कर पाया, तो आई विल गो बैक टू दिस जॉब, राइट? चीजों को समझ। रिसेंटली आई वाज एट टिम हॉर्टन्स एनएसपी में, दिल्ली में। सो देयर वाज दिस 20 इयर्स की लड़की कंटेंट क्रिएशन में थी, उसने मुझे पहचाना, डिस्कस किया, उसने कहा मैंने अपने पेरेंट्स से 1 साल मांगा है, राइट? सो 1 साल में मुझे कुछ प्रूव करके दिखाना है उनको। सो शी हैड दैट टेन्योर कि मैंने एक टाइम स्पैन लिया है, राइट? वो कब कर पाई? जब उसने पूरी तरह से उनको वो स्कोप दिखाया, सब चीजें बताई। सो आई थिंक फर्स्ट वी नीड टू डू इट एज अ केस स्टडी, करेक्ट? वेल रिसर्च्ड, यू नीड टू टेक एक्शन, एंड आपको वो कन्विक्शन उनको दिखाना पड़ेगा कि उनको वो बिलीफ आए कि हाँ यू आर सीरियस अबाउट इट। और इस प्रोसेस में ना कई बार आप ही रियलाइज कर लेते हो कि ये चीज मैं गलत कर रहा था, सही कर रहा था। मैं भी शायद एक स्पॉटलाइट से अट्रैक्टेड था, किसी ग्लैमर से या किसी, और ऐसा भी तो हो सकता है कि इस प्रोसेस में आप रियलाइज करो दैट मे बी आई डोंट वांट टू डू इट आल्सो। होता है, पता लगता है, हो सकता है। मैं इसको वर्ड देता हूँ करियर इंटर्नशिप। आप अपनी एक इंटर्नशिप करो, आप 30 डेज निकालो अपने साथ, कि आपके 5 कंफ्यूजन है या 4 कंफ्यूजन है, हर करियर पे एक रिसर्च करो, उसके रिलेटेड लोगों को मिलो, फोन करो। 30 डेज फॉर योर एंटायर लाइफ इज डिसेंट, वेरी डिसेंट, राइट? तो पुट दैट टाइम, पुट दैट अटेंशन। 30 दिन बाद आपका जो थॉट प्रोसेस, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग होगी, आप अपने लिए मच बेटर डिसीजन लोगे। ट्रू, नहीं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आई रियली होप करियर इंटर्नशिप वाला ये जो पॉइंट है, if people are able to execute it, it's I think the most practical way of doing things. बहुत इंटरेस्टिंग है। बट इसी के साथ, क्योंकि हम पैसे की बात कर ही रहे हैं हिमेश, कोई भी आप ऑब्वियसली करियर चॉइस करते हो तो वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो ही जाता है। आज की डेट में आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू एक यूट्यूबर कितने पैसे कमा सकता है या कमा लेता है। माई क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। इफ मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, इफ आई डिसाइड कल जाके 0 सब्सक्राइबर से मुझे एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, मैंने नीश डिसाइड नहीं की हुई है अपनी, but I know I'm comfortable in front of the camera, I can shoot, I'm interested in this. As of now I'm not looking at it as a full-time profession. Let's say मेरी कोई एक decent job है जहाँ से मुझे at least 20-25-30 हज़ार आ रहे हैं, but मुझे साइड पे इसको शुरू जरूर करना है, and I envision to maybe do this full-time. आप मुझे किस तरीके का रोड मैप दोगे टू बी एबल टू कम टू अ स्टेज जहां मैं यूट्यूब से पैसे कमा सकूं? मैं अमाउंट पूछ ही नहीं रही कि व्हेन डू यू थिंक देयर कुड बी अ टाइम, लेट्स से आई एम स्टार्टिंग विद 0, कि मुझे कुछ इन्फ्लो आने लगे फ्रॉम यूट्यूब इन टुडेज डे एंड टाइम, एंड आई एम एबल टू डू गेट एटलीस्ट सम एक्सपेंसेस फ्रॉम द मनी दैट्स कमिंग इन फ्रॉम यूट्यूब क्लियर्ड थ्रू इट। देयर इस क्वेश्चन को ना थोड़ा अलग तरीके से लेके चलते हैं, थोड़ा अलग आंसर करते हैं, सो दैट जो भी लोग देख रहे हैं ना उनके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैप्सूल बन पाए। और मेरा अगर 12 साल का एक्सपीरियंस है यूट्यूब में, तो वो एक्चुअली में उनकी हेल्प करे। तो मैं यहाँ पे आंसर स्टार्ट नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि हम इसको एक एवेटार बना लें। आपने कहा एक लड़की है, 20 से 25 हज़ार कमा रही है, साइड में कुछ करना चाह रही है, कैमरा कंफर्टेबल है, फोन उसके पास है। करेक्ट।
तो मेरे कुछ क्रॉस क्वेश्चंस होंगे, इसको कोई नाम दे दो अच्छा सा। श्रेया श्रेया शर्मा, राइट। अब मैं श्रेया शर्मा को और समझूंगा, आंसर्स दूंगा, बट इससे जो भी लोग सुन रहे हैं ना, वो बहुत सारे सिनेरियोज को अपने हिसाब से जोड़ पाएंगे, राइट। सो आई कैन से विद कॉन्फिडेंस ये बहुत हेल्पफुल होगा। यस, आई एम श्योर। हाँ, तो श्रेया की एस्पिरेशन क्या है, वो क्यों कंटेंट क्रिएट करना चाह रही है? उसका प्रायोरिटी 1 पैसा है, या उसको फेमस होना है, या कोई और एस्पिरेशन है? श्रेया को पैसे कमाने हैं, एंड इनफैक्ट उसका गोल क्लियर है कि उसको अपनी जॉब में जितनी इनकम आ रही है उतने या उससे ज्यादा पैसे कमाने हैं थ्रू कंटेंट क्रिएशन, और उसको थोड़ा बहुत फेम भी चाहिए, बट फेम इज नॉट द प्रायोरिटी राइट नाउ। सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज कि मेरे पास जॉब जितने पैसे आ जाए Correct. और उससे ज्यादा आ जाए तो मोस्ट वेलकम। हाँ. और साथ में कंटेंट क्रिएशन इसलिए कि अच्छा लगता है कुछ क्रिएट करना और लोग मुझे जाने, राइट। बट पैसा नहीं आ रहा और लोग जान रहे हैं, ऐसी एस्पिरेशन नहीं है। नहीं है। राइट। टाइम कितना है इसके पास, श्रेया के पास? हर रोज कितना टाइम दे सकती है कंटेंट क्रिएशन को? जॉब के अलावा आफ्टर वर्किंग आवर्स, बिकॉज इतने फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं है एज यू नो एमएनसी में, तो शी कैन गिव अ मैक्स ऑफ 2 hours एवरी डे। एंड वीकेंड एक आधा दिन दे सकती है? नहीं दे सकती? सैटरडे संडे? नहीं, वो आई थिंक सैटरडे दे सकती है। सैटरडे दे सकती है। वी हैव अराउंड एक दिन, या संडे 15 to 20 hours इन अ वीक। हाँ, 2 घंटे 5 more दिन than और that. 6 से 7 घंटे वीकेंड पे। Correct. ग्रेट। श्रेया जॉब क्या करती है? शी इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट एन एमएनसी। राइट। एक लास्ट क्वेश्चन, श्रेया की और एस्पिरेशंस क्या है, और क्या पसंद है उसको अपनी जॉब के अलावा? कुछ कॉलेज में, स्कूल में, या आजकल पसंद हो? हाँ, सो श्रेया लाइक्स talking to people from different countries. She likes traveling, and she also likes doing creative stuff. Anything where she has to brainstorm या कुछ build करना है from scratch, वो उसको पसंद है, but she hasn't really done something in that area. ग्रेट, ठीक है। अब क्योंकि श्रेया की एस्पिरेशन मनी है, हाँ, तो उसको जब अपना टॉपिक चूज करना है, जो अपनी नीश सिलेक्ट करनी है, उसको ये देखना है कि वो प्रॉफिटेबल जरूर हो, उसमें पैसा जरूर हो। बहुत सारी नीशेज ऐसी हैं जिसमें आपको पैसा तब आता है जब मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट में अगर आपने कमाना है तो आपको एक अच्छा लेवल चाहिए, राइट। बट एक कोच को कमाना है तो उसको कुछ हजारों लोग ही काफी हैं। अगर आप कोई सर्विस ऑफर कर रहे हो तो आपको हजारों लोग ही बहुत हैं, वही आपको एक आपकी जॉब से ज्यादा, श्रेया की जॉब से ज्यादा श्रेया को पैसा दे सकते हैं, करेक्ट, राइट। बट श्रेया को अगर कोई ग्लैम बिजनेस में जाना है, डांस इस तरह के फॉर्म में जाना है, तो उसको एक बड़ी रीच चाहिए होगी, जो अभी उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। जॉब भी है, टाइम भी कम है, राइट। सो श्रेया हैज टू चूज अ नीश जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी हो। अब एग्जांपल्स लेके चल लेते हैं कि श्रेया को आपने जो इंटरेस्ट बताए, एक तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ही रही है, करेक्ट, राइट। तो आईटी टेक ये उसके फील्ड बन जाते हैं कहीं ना कहीं। अगर उसका इंटरेस्ट भी है उसमें, तो ये देखे वो टेक अच्छा सिखा सकती है, क्या उसके कुलीग सीखते आए हैं उससे, या टेक के बारे में अच्छा बता सकती है, या टेक में एआई इज समथिंग जो आजकल बहुत ट्रेंड पकड़ रहा है और उसकी बैकग्राउंड भी मैच करती है, राइट। तो एआई इज समथिंग, एआई में वो कोई सर्विस, प्रोडक्ट, या एआई का रिव्यूज, या एआई के प्रोस्पेक्ट्स, एआई की जॉब्स, कोई एक सेक्टर वीडियोस पकड़ बनाना तो स्टार्ट कर ही सकती है, वीडियोस बनाना शुरू कर सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे चेक करी जाए, देखा जाए कि उस चीज की मेरे आसपास डिमांड है या इंटरनेट पे डिमांड है। फॉर एग्जांपल अगर उसने एआई चूज किया, तो जाके देखिए एआई के कोर्सेज होते हैं, क्या प्राइस पॉइंट होते हैं, कितने लोग उसको लेते हैं। एआई के रिलेटेड अमेजोन में सर्च करे, देखिए एआई के रिलेटेड प्रोडक्ट्स कितने पीक पकड़ रहे हैं, उनका ट्रेंड कैसा है, करेक्ट, राइट। आसपास लोगों से पूछे, खुद का कंज्यूमर बिहेवियर देखे कि मैं एआई की चीजों में कितना इंटरेस्ट ले रही हूँ, राइट। मे बी उसको कोई लेना देना नहीं है इससे, और उसको फैशन का शौक है, बट शी इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय मिस्टेक, राइट। घर वालों ने कहा था बेटी इंजीनियर बनेगी, वो बन गई, बट उसकी एस्पिरेशन फैशन है। अब फैशन के अंदर अगर आज इन्फ्लुएंसर बने तो एक ह्यूज कंपटीशन है, तो उसको वहां भी नैरो डाउन करना है कि फैशन में मैं क्या पकड़ सकती हूँ। मे बी मैं एक स्किन टाइप ही पकड़ सकती हूँ जिसपे कोई ज्यादा लोग कंटेंट नहीं बना रहे। मे बी मैं नेचुरल पकड़ सकती हूँ, मेरा नेचुरल में इंटरेस्ट है कि मैं सिर्फ नेचुरल चीजें ही कवर करूंगी। मेरी ऑडियंस ही वो होगी जिसको केमिकल से भागना है। अब मैं देखूंगा इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, मैं देखूंगा फॉरेस्ट एसेंशियल का बिजनेस कैसा चल रहा है, मैं देखूंगा अमेजोन पे नेचुरल प्रोडक्ट कैसे चल रहे हैं, इसका ट्रेंड गूगल ट्रेंड में बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो आई विल सी सम इंडिकेटर्स के इसके अंदर कल को अगर मुझे पैसा कमाना है तो क्या स्कोप बन सकते हैं, गॉट इट, राइट। सो शुरू में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बड़ा ऑडियंस कैप्चर करने की भीड़ में जाओगे, नहीं कर पाओगे, कंपटीशन नजर आएगा। आप एक छोटी ऑडियंस पकड़ो, लेकिन ऐसी ऑडियंस पकड़ो जो आपकी हर वीडियो देखे, करेक्ट, राइट। अगर मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर चैनल्स बहुत कम है, ट्रू। ये एक नीश बची हुई है, कोर पब्लिक स्पीकिंग, और चाहिए बहुत लोगों को, राइट। कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी कुछ बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी कम है। तो कुछ नीशेज हैं जो भी बची होती हैं। ब्रॉडली ट्रेनिंग बहुत ज्यादा भरी हुई है, ऐसे ब्रॉडली टेक बहुत भरा हुआ है, लेकिन टेक के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी नीशेज हैं। एआई अपने आप में एक नीश है।
तो उसको पैसा कमाना है तो ये देखना होगा किस चीज से पैसा आ सकता है. सो स्टॉप कॉलिंग श्रेया क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर. लेट्स कॉल हर क्रिएटरप्रनोर और अ वीडियोप्रनोर. तो उसको स्टार्टअप की तरह सोचना है. करेक्ट. शी हैज टू लुक एट इट एज अ स्टार्टअप फ्रॉम डे वन. राइट. पर देन इसमें हिमेश श्रेया ने लेट्स से एक नीश पूरा डेटा रिसर्च सब करके ये डिसाइड कर लिया कहाँ किस नीश में जाना है. प्लेटफॉर्म किस बेसिस पे चूज करेगी वो? बिकॉज ऑप्शंस तो आजकल बहुत हैं. बिल्कुल. अब 3 चीजें आ जाएंगी इसमें. एक आ जाएगा आपकी ऑडियंस कौन सी है, राइट. आपका कनेक्ट कैसा है. एंड थर्ड, आपकी टाइम कितना है आपके पास, राइट. टाइम मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर आप 2-1.5 घंटा ही रोज निकाल सकते हो और आप सोचते हो मुझे लॉन्ग फॉर्मेट बनाना है यूट्यूब पे, राइट. एक यूट्यूब की वीडियो आज की डेट में अगर आपने बनानी है, इट हैज टू बी वेरी गुड. नॉट जस्ट, मैं ये नहीं कह रहा एडिटिंग अच्छी, मैं कह रहा हूँ उसका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए. क्योंकि लोग प्रॉपर टाइम निकाल के बना रहे हैं और आप कह रहे हो मैं जॉब के बाद घर आके 1 घंटा लगा के एक अच्छा लॉन्ग फॉर्मेट जो पहले दिन में लोगों को पसंद आना शुरू हो जाए, ये इसकी वायबिलिटी बहुत कम हो जाएगी. तो जॉब के साथ साथ आपको भी एक्सपोजर चाहिए, अभी आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, अभी आपको अपने हैंड्स ऑन करने हैं. तो स्टार्ट विद द शॉर्ट कंटेंट, गो विद द रील्स. क्योंकि वो आप 2 घंटे बैठोगे तो हफ्ते की 3 से 4 तो डाल पाओगे. करेक्ट. राइट. शायद आप ग्रेजुअली 1 रोज की डाल लो. अगर आपने 2-2 घंटे 3 दिन कंटेंट लिख लिया, 1 दिन शूट कर लिया और 1-2 दिन बैठ के एक लॉट में सैटरडे को एडिट कर लिया. करेक्ट. राइट. 5 days फॉर रिसर्च एंड शूट, 1 day फॉर एडिट. आपका डेली एक रील जाना शुरू हो जाएगी. इससे एटलीस्ट आप कंटेंट क्रिएशन से कंफर्टेबल हो गए, कंटेंट राइटिंग से कंफर्टेबल हो गए, एडिट, स्टोरी टेलिंग, इन चीजों से कंफर्टेबल हो गए. एंड देन आपको ग्रेजुअली वो ट्रेंड नजर आएगा कब मुझे लॉन्ग फॉर्मेट में शिफ्ट करना है. अब मैंने सैलरी जितना कमाना शुरू कर दिया है, अगर उस पर हम आ जाते हैं कैसे वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन तब आप लॉन्ग फॉर्मेट में जाओगे. ऐसे आपका प्लेटफॉर्म कौन सा है. आप बात कर रहे हो अगर कोचिंग की, तो आपके लिए लिंक्डइन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है. कंसल्टिंग की बात कर रहे हो, आप कोई B2B काम कर रहे हो, कहीं भी जहां आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस लिंक्डइन पे है, तो आपके लिए लिंक्डइन इंपॉर्टेंट है. आप फैशन, एंटरटेनमेंट, डांस, टेक, इन चीजों की बात कर रहे हो तो इंस्टाग्राम आपका प्राइमरी हो सकता है. करेक्ट. कंजम्पशन जो लोग स्पेशली सर्च करते हैं, आप उन चीजों को बना रहे हो. ट्रेनिंग, एजुकेशन. इंस्टाग्राम पे लोग सीखने नहीं आते. आई वोंट गो टू इंस्टाग्राम एंड सर्च हाउ टू स्पीक बेटर. राइट. आई गो टू यूट्यूब एंड सर्च हाउ टू स्पीक बेटर. तो मैं उसके शॉर्ट्स भी देखूंगा, लॉन्ग भी देखूंगा. तो एटलीस्ट मैं शॉर्ट्स में श्रेया कैन फिट हरसेल्फ. तो ये आपका टाइम, ऑडियंस एंड आपका कनेक्ट, आपकी लैंग्वेज किस प्लेटफॉर्म से रेजोनेट करती है. शॉर्ट्स की एक अलग लैंग्वेज है, रील्स की एक अलग लैंग्वेज है. शॉर्ट्स की अलग ऑडियंस है, रील्स की अलग ऑडियंस है. ये आ जाएगा. अब यहाँ पे श्रेया को इनिशियली 2 तरीके हो सकते हैं उसका शुरू करने के. एक है पहले अपना बिजनेस सोच ले, फिर कंटेंट बनाना शुरू करे. करेक्ट. ये मैं आज काफी लोगों को आजकल सजेस्ट करता हूँ. ये बहुत, क्योंकि जब आप कंटेंट शुरू कर देते हो ना, आपको टाइम नहीं मिलता बिजनेस सोचने का. फिर आपके अंदर 100 फियर्स आते हैं, इनसिक्योरिटीज आते हैं. मैं 1 महीना कंटेंट नहीं बनाऊं, अभी तो आपने शुरू नहीं किया ना. तो कुछ बेसिक प्रोडक्ट सोच लो जिस पे आपकी इन्वेस्टमेंट ना हो. इट कैन बी अ डिजिटल प्रोडक्ट ओनली, जिसके बारे में मैं बात कल को अपनी वीडियोस में कर सकता हूँ. इट कैन बी 1-to-1 कंसल्टिंग ओनली, कि मेरी एआई के अंदर एक ग्रिप है, मैं एआई में आपको 30 मिनट्स का सेशन एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट आई कैन सिट एंड गिव सम कंसल्टिंग टू यू. यहाँ पे एफिलिएट सोच सकते हो कि मैं ये प्रोडक्ट्स को अपनी वीडियोस में इंटीग्रेट करूंगी. मेरी एक्सपर्टीज नहीं है एआई में, मैं तो एक बिगिनर हूँ. मैं श्रेया अभी तो जॉब कर रही थी, मैं कैसे कह दूँ मैं एआई एक्सपर्ट हूँ. तो मैं एआई के कुछ एक्सपर्ट्स के प्रोग्राम्स को पिच कर सकती हूँ एज एन एफिलिएट. तो आप बिजनेस थोड़ा सा वर्कआउट कर लो. बड़ा आप अभी कर नहीं पाओगे, करने की जरूरत भी नहीं है. बट आपको पता हो कि यार जब मेरे वीडियोस चलनी शुरू हो तो तब मुझे पॉज लेके ना वो फ्लो को रोक के प्रोडक्ट की तरफ ना जाना पड़े. करेक्ट. तो आप प्रोडक्ट को अगर वर्कआउट कर सकते हो तो जरूर करो. नाउ अर्निंग वुड स्टार्ट, आई कॉल इट IEE मॉडल. पहले आप इंटरेस्ट से चल रहे हो, इंटरेस्ट सिर्फ इंटरेस्टेड हो, कर रहे हो, तो अब इंटरेस्ट में एड रेवेन्यू से कमाते हो. आज की डेट में बहुत कम फॉलोअर्स के साथ भी आपको ब्रांड डील मिल जाती है, जिसको हम नैनो क्रिएटर्स या माइक्रो क्रिएटर्स कहते हैं, जिसमें बहुत ब्रांड्स इंटरेस्टेड होते हैं. एंड एफिलिएट इनकम कर सकते हो, जो आपके हाथ में है. आप जितने व्यूज आपके इंक्रीज हो, आपका एफिलिएट इंक्रीज हो जाएगा. करेक्ट. ग्रेजुअली 6 months 1 year डाउन आप एक्सपर्ट बन जाते हो. आय से अब E पे आ गए हो. जब आप एक्सपर्ट बन जाते हो ना, आपके रेवेन्यूज एकदम इंक्रीज हो जाते हैं. अब आप कंसल्टिंग्स देते हो, ट्रेनिंग्स करते हो, सेशंस करते हो, बुक लिख सकते हो, कोचिंग्स कर सकते हो, कोर्सेज लॉन्च कर सकते हो. राइट. एवेन्यूज एक्सपैंड हो जाते हैं. मल्टीप्लायर. राइट. एंड थर्ड स्टेज की अभी श्रेया को जरूरत नहीं होगी जानने की, बट थर्ड E इज एंटरप्राइज. अब आप अपने जैसे, क्योंकि आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस आ गया है कि अब आप अपने जैसे और लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हो. अलक पांडे ने फिजिक्स वाला बना दिया. राइट. कई सारे लोगों ने कई सारे स्टार्टअप्स बना दिए. रोमन सैनी ने अनअकैडमी बना दिया. सो दे ऑल स्टार्टेड विद I, went to E, and now they are into enterprise. So that's a journey of any creator. You start from I, but you should know कि E तक का स्कोप है.
यूनिकॉर्न बनने का स्कोप है, अब तो बन गए। नहीं, ये बहुत वैल्यू एडिंग आई थिंक आंसर था, और मुझे बहुत मजा आया इन द वे यू ब्रोक इट डाउन, बिकॉज आपने एक रियल टाइम सिनेरियो, एक रियल, भले ही वो वर्चुअल नॉन एग्जिस्टेंशियल श्रेया है, बट श्रेया ऐसी होंगी और बहुत लोग हैं जो श्रेया जैसे हैं, तो उनको एक प्रैक्टिकल रोड मैप स्टेप बाय स्टेप मिलेगा इससे कि ये इस स्टेज पे ऐसे करना है और ये आउटकम आ सकता है, विच आई थिंक इज द परफेक्ट वे कि आपने आंसर किया, वरना बहुत ही एक जेनेरिक आंसर हो जाता जहाँ पे मे बी जो लोग एग्जैक्टली चाह रहे थे वैल्यू आए वो नहीं आ पाती। सो आई एम ग्लैड कि आपने उस तरीके से इसको आंसर किया। विद दैट हिमेश, अब आपकी थोड़ी बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मनी। ठीक है, अब आज की डेट में तो ऑब्वियसली आप मल्टीपल चीजें कर रहे हो। When money starts flowing in from different resources in a person's life, एक ही इंसान अब वो सीख चुका है अपनी कैपेबिलिटी से या एक पोटेंशियल से कि आई डोंट हैव टू डिपेंड ऑन जस्ट वन थिंग। आज अगर ये एक बंद हो गई फॉर एग्जाम्पल, या दूसरी बंद हो गई, आई नो देयर आर मल्टीपल अदर वेज इन विच आई कैन सस्टेन। जब एक इंसान उस स्टेज पे आ जाता है, हाउ डू यू लुक एट योर मनी टुडे? आपका माइंडसेट विद रिस्पेक्ट टू मनी, गोइंग बैक टू माई फर्स्ट क्वेश्चन, जब आपने अपने फादर को डेट में देखा, इतने लोन्स चल रहे हैं, लीगल केसेस चल रहे हैं, आपने 3 बार ऑलमोस्ट अपना करियर इन अ वे रीसेट किया, you saw the highs, you saw the lows, you came to the middle also. How has your mindset with how you look at money, what do you think it can do, changed over the years from then to now? How do you look at it? मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग नहीं करता हूँ जो बोलेगा कि पैसे से क्या होता है, या पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, या पैसा मोह माया है, या एक बार कमा लिया तो अब पैसे की अब तो कुछ और गोल्स बन गए हैं जिंदगी के। मुझे लगता है मनी की इंपॉर्टेंस हमेशा मेरी लाइफ में इसलिए रहेगी क्योंकि आई कांट फॉरगेट दोज डेज। करेक्ट, राइट। वो 7-8 साल में घर में जब कोई बीमार हुआ और हम कुछ नहीं कर पाए, वो दिन नहीं भूल सकते। और क्योंकि वो टाइम देखा हुआ है, तो आज भी ये नहीं हो सकता कि मेरी प्लेट में खाना बचा और मैं कहूँ तो क्या ही हो गया, 5 रुपए की रोटी जा रही तो क्या हो गया। आज भी फूड वेस्टेज उतनी ही इंपॉर्टेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बैंक बैलेंस। राइट। आज भी मनी इज नॉट ऑन फर्स्ट सीट बट नॉट ऑन थर्ड सीट, इट इज ऑन सेकेंड सीट, इट वॉज ऑलवेज ऑन सेकेंड सीट। ये मिशन के बाद पैसा, मिशन के बाद मनी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, रहेगा। अब आप अगर इस पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो कि रिलेशन कैसे बदला, आई वुड से ओवर द इयर्स मेरे लिए मनी की इंपॉर्टेंस और बड़ी है। मुझे समझ आया कि 2017 तक ये कनेक्ट कर जाएगा हमारे पूरे पॉडकास्ट के बहुत सारी चीजों से। 2017 तक आई वॉज अ क्रिएटर, आई वॉज नॉट अ क्रिएटरप्रेन्योर, आई वॉज अ वीडियो क्रिएटर नॉट अ वीडियोप्रेन्योर। राइट। 2017 तक मेरी ग्रोथ भी नहीं थी, और जिस तरह की विजन मिशन मैं बनाना चाहता था मैं बना भी नहीं पा रहा था। मैं महीने की 4 वीडियो बनाता था, खुद ही एडिट करता था, खुद ही टाइम निकालता था, कभी 3 हो जाती थी, कोई सेमिनार आ गया 2 हो जाती थी। तो मैं एक बहुत बड़ी रीच नहीं क्रिएट कर पा रहा था, बिकॉज मेरे लिए क्या गोल था कि से गुंजन मेरी वाइफ की जितनी सैलरी है उतना मैं भी कर लूं, दोनों बराबर मिलके घर चला ले। करेक्ट। राइट। या फिर अगर मैं जॉब में होता, इतना कमा रहा होता, चलो इतना कमा लूं, ठीक है, मेरे को सिर्फ सर्व करना है, लोगों की लाइफ बदलनी, ये पर्पस है। बहुत प्रिपेयर्ड था। मैं गुंजन को कहता था यार हम किसी गांव के अंदर एक कमरे के अंदर भी रह लेंगे, लेकिन मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा। तो सोच ही ऐसी थी, कभी ये सोच ही नहीं थी गुंजन हम इसमें बड़ा कुछ करेंगे। 2017 थैंक्स टू कंपटीशन, जब कंपटीशन आना शुरू हुआ तो समझ आया कि लोग तो इसको ऑर्गेनाइज तरीके से भी कर रहे हैं। राइट। दूसरी नीश में देखा लोग कर रहे हैं, 2-3 क्रिएटर्स ने एज अ बिजनेस करना शुरू किया, और मैंने देखा वो ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। राइट। सो देन आई अंडरस्टूड कि इसको एंटरप्रेन्योरशिप की तरह करना होगा, टीम क्रिएट करनी होगी, रिस्क लेने होंगे, अपनी जो इनकम है उतनी सैलरी का एक बंदा हायर किया, अपनी इनकम 0 करी। राइट। और ये जब रिस्क लिए, क्यों लिए? ताकि हम मनी का फ्लो इंक्रीज कर पाए, सो दैट हम अपना कंटेंट का फ्लो इंक्रीज कर पाए, ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। करेक्ट। तो मनी नहीं होती तो शायद आज मैं सर्वाइव चैनल मैं भी ना कर रहा होता, और जो मैं सर्व कर पा रहा हूँ वो भी ना कर पाता। तो इससे अच्छा फ्यूल कोई नहीं है। करेक्ट। इवन इफ यू वांट टू चेंज मिलियंस ऑफ लाइफ, अगर किसी बाबा जी को बहुत लोगों की जिंदगी बदलनी है, एक आश्रम बनाने के लिए भी पैसा चाहिए, जगह जगह जाने के लिए भी पैसा चाहिए, लोगों तक उस बात को पहुंचाने के लिए भी पैसा चाहिए, टीवी वाले भी स्लॉट का पैसा लेंगे, तब जाके आपका प्रवचन वहां पे जाएगा। बात तो एकदम सही। तो आई वुड ऑलवेज से कि मतलब देयर इज नो सेकंड थॉट। हम इसको शायद हमारे कल्चर में पैसे को उतनी वैल्यू नहीं देते। बहुत सारे लोग, घरों में ऐसी बातें होती हैं, पैसे को बोला ही ऐसा जाता है क्योंकि वो कंफर्ट जोन है। अगर मैं नहीं कमा पाया तो मैं अपने बच्चों को यही कहूंगा कि पैसे वालों में तो बुरे ही होते हैं। राइट। अगर मेरे में वो हिम्मत नहीं थी कि मैं रिस्क ले पाया, तो मैं अपने बच्चों को ये बार बार बताऊंगा, पैसा तो जड़ है। पैसा तो बुराई की जड़ है, पैसा तो बुराई की जड़ है।
गरीब से घर में भी लड़ाइयाँ होती है और अमीर से अमीर घर में भी लड़ाइयाँ होती है, पैसे का कोई कनेक्शन नहीं है उससे। सही बात है। ये शायद बात तो लड़ाइयों की नेचर बेटर हो जाती है जब हाँ। आप अमीर होते हो। कलेश तो हो सकते कलेश हैं, हर जगह होते हैं, वो सोफिस्टिकेटेड कलेश हो होते जाते हैं। हैं। वर्ड यूसेज अलग होती Yes. होगी, टोनैलिटी अलग होती होगी। क्योंकि आप थोड़ा ट्रेन हो जाते हो, आप एजुकेट हो जाते हो, आप अफोर्ड करते हो 4 किताबें खरीदना, पढ़ना, आप अफोर्ड करते हो कोई बड़ी वर्कशॉप अटेंड करना, तो आपकी लड़ाई की नेचर बदलेगी। राइट। राइट, आप अफोर्ड करते हो, अगर कलेश हो गया है तो सॉर्ट करने के लिए पेशेंट हो, ऐसा नहीं है कि रात की रोटी के पैसे नहीं है। करेक्ट। यू हैव दैट पेशेंस, क्योंकि आपका ध्यान 20 चीजों पे कम है। हाँ नहीं तो एक तरफ आपको कल सुबह नौकरी पे भी जाना है, आप छुट्टी भी नहीं ले सकते, दिहाड़ी पे भी जाना है, हाँ। और ऊपर से रात की रोटी का भी इंतजाम नहीं है, बैंक बैलेंस खाली है। अब हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया तो कैसा होगा? करेक्ट 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 करेक्ट। सर्कमस्टेंसेस की बात है। नहीं, बट वेरी वेल सेड अगेन, लाइक यू सेड कि विथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मुझे बहुत अच्छी बात लगी आपने बोला कि अभी भी नंबर 2 पे सीट पे मनी है, एंड मिशन के बाद मनी इज इंपॉर्टेंट, और मेरे लिए इंपॉर्टेंस बड़ी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यस यस। गॉट इट। आप मैनेज कैसे करते हो अपने मनी को हिमेश? व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड, जब अलग अलग जगह से पैसा आता है, इफ आई आस्क यू टुडे, जैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, सेव करते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं, अ मेजर पार्ट ऑफ द मनी दैट यू आर वर्किंग टुडे, हाउ आर यू टेकिंग केयर ऑफ इट? मनी मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो? बिकॉज आई थिंक दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। पैसा आज की डेट में इंसान बना लेता है, मुझे लगता है बहुत लोग पैसे कमा रहे हैं। पैसे कमाना या भी एक स्किल है जो इंसान सीख गया है, बिकॉज सो मच इन्फॉर्मेशन आउट देयर, बट उस पैसे को सस्टेन करना इज द एक्चुअल गेम। कमा कोई भी सकता है, यू कैन गो देयर बट इट कैन कम डाउन राइट इन अ सेकंड। वी नो ऑफ केसेस ऑफ बिलियनर्स हु हैव कम डाउन टू स्ट्रीट्स एज वेल। हाउ डू यू मेंटेन द मनी दैट यू हैव मेड एंड इंश्योर कि वो सस्टेनेबल हो? देखो, धैर्य इंसान की जरूरतें बहुत थोड़ी होती हैं। 2 वक्त का लुई विटॉन, 1 वक्त का गुच्ची। जस्ट जोकिंग। वैसे भी आई एम नॉट इनटू ब्रांड्स, तो इट वाज अ जोक। मैं अपना ना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं इसको राइट रॉन्ग नहीं कह सकता। दिस वर्कड फॉर मी, इट माइट नॉट हैव वर्कड फॉर मी और माइट नॉट वर्क फॉर समवन। मैंने थोड़ी बेवकूफ़ी करी इंटेंशनली, कि लोग कहते हैं जब कमा रहे हो तो जोड़ते जाओ। मैंने फर्स्ट 6-7 ईयर्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन में सेविंग पे फोकस नहीं किया था। नहीं किया था। आई स्पेंट एवरीथिंग बैक। आई ऑलवेज री इन्वेस्टेड टीम बिल्डिंग करने में। बट डोंट यू थिंक री इन्वेस्टिंग इन द टीम इज द दैट इज द इन्वेस्टमेंट आई डिड, आई वुड से। हाँ, मतलब मैंने कोई कैपिटल नहीं बिल्ड करी, मैंने कोई बैकअप नहीं बिल्ड करा। आप टीम में डालते गए? अगर गिरता तो 2-3 महीने से ज्यादा रनअप नहीं था, वो भी जो बीवी की जॉब से सेविंग है। अच्छा। तो मैंने ऐसे बहुत बार रिस्क लिए कि मेरे पास रनअप नहीं है। हाँ। मैक्स 1-2 महीने के रनअप को आप रनअप नहीं बोलोगे, उसको इतना तो आप लेके चलोगे। तो मेरा गोल ये था, मुझे 30 से पहले सोचना नहीं है। एट द एज ऑफ 30 तक नहीं सोचना। 30 पे मैं कहता था मैं रिटायर हो जाऊंगा, मतलब 30 पे जाके सोचूंगा कि आई हैव टू बिल्ड समथिंग, कि अब ऑटोमेशन वाली इनकम्स हो और फिर सेविंग पे आऊंगा। सो दिस इज व्हाट आई प्लान्ड, आई थॉट। मेरा नेचर ऐसे काम किया और मुझे लगता है मेरे लिए वो सही रहा, क्योंकि मेरा पूरा फोकस बिल्डिंग पे गया। मैंने ऐसी हायरिंग्स करी जो मेरी 2 महीने के रनअप को भी खा जाती थी। राइट, मुझे आज भी याद है, मैं गुंजन को कहता था कि यार मैं एक हायरिंग कर रहा हूँ। सो द फर्स्ट हायर एक्सपेंसिव हायरिंग आई डिड, तो मेरा उस टाइम पे मैं ड्रॉ कर रहा था 30-35,000 अपने लिए बना रहा था, और हायरिंग थी 40,000 के बंदे की। अच्छा। राइट, तो मेरे पास नहीं थे पैसे। तो मैंने गुंजन के पास एक उसकी कंपनी के थोड़ा सा शेयर्स होते थे, स्टॉक होता था। तो वो स्टॉक ना हमेशा मेरा कॉन्फिडेंस होता था कि गुंजन मैं हायर कर रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ी स्टॉक बेचेंगे। कभी नहीं बेचना पड़ा, बट मैंने शायद 10-20 डिसीजंस लिए उस स्टॉक के भरोसे। स्टॉक इतना ही था कि 3 महीने का रनअप, और 3 महीने 4 महीने का रनअप था, इससे ज्यादा स्टॉक नहीं थे उसके पास। लेकिन वो 3-4 महीने मेरे लिए बड़ी बात थी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैंने बहुत रिस्क तरीके से करा, क्योंकि शायद मैंने जीरो देखे हुए थे। मुझे प्रॉब्लम नहीं थी कि अगर हम जीरो पे आएंगे, आई कैन गो बैक टू मे बी अ जॉब और मे बी डू समथिंग, और कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा करके चीज़ों को कर लूंगा। ये मेरे लिए काम किया। उतना रिस्क टेकिंग एपेटाइट भी होना चाहिए, उतना तुम्हारा टेम्परामेंट भी होना चाहिए, उतना जिगरा भी होना चाहिए। करेक्ट। तो अगर नहीं है तो कैपिटल बनाओ और धीरे धीरे चलो। शायद जहाँ मैं 30 पे पहुंचो आप 35 पे पहुंचोगे। क्योंकि आपने अपने पैसों को पूरा इन्वेस्ट नहीं किया, आपने आधा किया। 30 के बाद आई डिसाइडेड थिंग्स विल बी चेंजिंग। चीज़ें बदली। 30 के बाद मैंने कैपिटल बिल्डिंग पे फोकस किया, इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू करी, पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू करा। तो वो सब जो आप पूछ रहे हो वो मैंने 30 के बाद शुरू किया। और मैंने जो रिटायरमेंट सोची थी वो हो गई, बट मैं रिटायर हुआ नहीं, क्योंकि काम करना पसंद है। करेक्ट। तो गोल्स बड़े कर लिए कि अब और बड़ी रिटायरमेंट चाहिए, और बड़ी रिटायरमेंट चाहिए, क्योंकि दैट कीप्स यू मोटिवेटेड। बट आज भी यू वुड से
a huge chunk of the money goes back into the reinvestment in the business? अब तो नहीं, No, अब because it's a हाँ नीड भी होनी चाहिए ना बिजनेस की, जबरदस्ती बर्न नहीं burn नहीं करोगे। करना, हाँ, तो अब कैपिटल ऐसी है कि मैं अगर कुछ होता है तो मैं अपनी टीम को 1 साल 1.5 साल तक सरवाइव करने का प्लान लेके चलता हूँ। मैं Correct. समझता हूँ उन्होंने अगर ज्वाइन कर लिया तो कभी ये नहीं होगा कि यू आर फायर्ड, fired, हाँ, क्योंकि 6 महीने बहुत होते हैं अपनी ट्रेजेक्टरी को बदलने के लिए। correct, आज यूट्यूब ना, अगर यूट्यूब बंद हो जाए, कोई ऐसा हो जाए, कंटेंट क्रिएशन जीरो हो जाए, हाँ, तो आई हैव 6 months 8 months टू थिंक, द टीम वुड बी कंफर्टेबल, उनकी घर की रोटी नहीं रुकेगी और हम 6-7 महीने में दोबारा कुछ तो बना लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस है। जो Right. चल रहा होगा वो कर लेंगे। perfect, सही है, ग्रेट। नो, वेरी इंटरेस्टिंग टू ऑल्सो नो कि आपकी अप्रोच मुझे भी मतलब बहुत अलग लगी, बट लाइक यू सेड दैट वर्कड फॉर यू। आपने अपने 20s में, इनिशियल ईयर्स में सेविंग पे फोकस नहीं किया, यू कंप्लीटली वेंट इनटू गिविंग इट टू द बिजनेस। आफ्टर 30 नाउ इनटू कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स एंड अपने अपनी पोर्टफोलियो बनाई। आई मीन ईच टू इट्स ओन, जो आपके लिए काम करे, आई थिंक इन दिस पर्सपेक्टिव। इसीलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि दिस इज एन एडवाइस। बहुत Correct. लोग जब एक चीज कर लेते हैं तो वो अपनी ट्रेजेक्टरी को एक नो ये मान लेते हैं कि अब सबको ये करना है। यही करना है। That Everyone is doesn't different. work. Yeah, it doesn't. I agree. I think so far, हिमीश, मैंने obviously आपकी जर्नी में बहुत सारी चीजें डिकोड की। हमने बात किया about your early years, about your first job, to becoming a trainer, doing so well as a trainer in a different company, to becoming a trainer independently, to content creation, to how you scaled the company. Now आप क्या कर रहे हो at this stage? आज की डेट में 5 million plus सब्सक्राइबर्स हैं आपके यूट्यूब चैनल पे। आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप एक ऑथर भी हो, यू कंटिन्यू टू पुट कंटेंट कंसिस्टेंटली इवन टुडे। व्हाट इज द विजन? व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड, हिमीश, इज इफ नॉट इमीडिएटली, मैं 5 साल की बात करनी, बट आज से 1-2 साल के अंदर, व्हाट आर अ फ्यू एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स, इफ एनी, और एनीथिंग दैट यू रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू बिल्ड, क्रिएट और वर्क ऑन विद द टीम, जो थोड़ा एक्साइटिंग होने वाला है, या इट्स गोना बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव ऑलरेडी बीन डूइंग? अगर ऐसा कुछ है, इफ यू वुड लाइक टू शेयर। या सो मैं मानता हूँ कि अपनी स्ट्रेंथ्स को ही आपको देखना चाहिए, इनकैश करना चाहिए। तो मेरी लिमिटेड सी स्ट्रेंथ्स हैं, हाँ. मैं उन्हीं के ऊपर काम करता हूँ। मेरी देखा जाए तो 3 स्ट्रेंथ्स हैं। एक है मेरी कंटेंट क्रिएशन, विच यू कैन कॉल स्टोरी टेलिंग, कम्युनिकेशन, जो भी कह सकते हो। Right. सेकंड इज कोचिंग। मैं माइंडसेट के ऊपर पिछले 12 साल से काम कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर मेरी एक ओवर द ईयर्स एक्सपर्टीज बन गई, रिजल्ट्स हो गए। एंड थर्ड इज बिल्डिंग बेसिकली इन्फ्लुएंस, और से कंटेंट क्रिएशन ही कह सकते हो उसको, लेकिन उसमें 12 साल करते हुए हो गए। वो सिर्फ एक्सपीरियंस, वो सिर्फ एक स्किल नहीं है, वो एक्सपीरियंस है। राइट। तो कंटेंट क्रिएशन में आई वांट टू कीप डूइंग इट। ये मेरा पल्स है, ये मेरा प्यार है, ये मेरा इश्क है, इसको मैं हमेशा जीना चाहता हूँ। और इसकी टेस्टिमोनी है मेरी लाइफ के, इतनी सारी अट्रैक्शंस और डिस्ट्रैक्शंस आई जिन्होंने कहा कि इसको छोड़ के तेरे पास बेटर पैसा आ जाएगा, और मैंने मना किया। ऐसे ऑफर्स आई कि तुम हमारा ब्रांड बिल्ड कर दो, तब जब पैसे नहीं होते थे 2016-17, कि तुम यूट्यूब पे अच्छा कर रहे हो, हमारे लिए काम करो, Correct. हमारे स्टार्टअप के लिए करो, हमारे एडटेक के लिए, हमारे चैनल के लिए करो, यू डिसाइड द अमाउंट, Okay. राइट? 3x 4x 5x ऑफ व्हाट यू आर अर्निंग। वो सब मना किया, तो उससे ये क्लैरिटी हो गई कि ये तो जान है, ये इश्क है। मतलब मजा इसी में है कि आज कुछ बनाया, लोगों तक पहुंचाया, मेरी जिंदगी यही चीज चलाती है, राइट? तो ये करते रहना है, इसको तो बस इम्प्रूव करते आए और करते रहेंगे, समझते जाएंगे बेटर क्या कर सकते हैं, ऑडियंस को कैसे सर्व कर सकते हैं। सो ये एक ट्रैजेक्टरी है, चलती रहेगी, नथिंग न्यू इन दिस। सेकंड इज लाइफ कोचिंग, माइंडसेट, जिसके मैं सेशंस भी करता हूँ। वहाँ पे वी हैव एन अकेडमी, हम उसको स्केल कर रहे हैं कि अगर मैंने कुछ सीखा है, मैं और कोचेस के साथ वो चीज़ कर रहा हूँ। सो वी कॉल इट लाइफ मास्टरी प्रोग्राम, जहाँ पे हम लोगों को बेसिकली हाउ दे कैन ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ्स। 3 घंटे की मूवी देखने की जगह 3 घंटे का अगर सेशन देख लेते हो तो जिंदगी कैसे बदल जाती है। सो वहाँ पे वी डू लाइव सेशंस एंड वी हैव अ कम्युनिटी जिसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। एंड थर्ड इज, क्योंकि मैं अपने फील्ड में तो एक क्रिएटर बन पाया और लोगों की लाइफ चेंज कर पाया। बहुत सारे लोग हैं जो क्रिएटर बनना चाहते हैं और अपने फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं। तो मैं तो हर जगह नहीं पहुंच सकता, हर किसी तक नहीं पहुंच सकता। सो पिछले कुछ सालों से वी हैव स्टार्टेड हेल्पिंग क्रिएटर्स आल्सो इन ग्रोइंग देयर इन्फ्लुएंस, इन ग्रोइंग। जो 10 साल में मैंने सीखा, तुम 1 साल में उसको लर्निंग कर्व को छोटा कर लो। वी हैव एन इन्फ्लुएंसर अकेडमी, जहाँ पे हम 1-to-1 भी हेल्प करते हैं विद आवर कोचेस, जिनको मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस ट्रांसफर किया है। उसको हम अभी स्केल कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। सो दैट दीज 2 थिंग्स आर क्वाइट न्यू इन नेचर, द लाइफ मास्टरी अकेडमी एंड इन्फ्लुएंसर अकेडमी। तो उसमें बहुत सारी नई लर्निंग्स भी हो रही हैं, हायरिंग्स हो रही हैं। ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, कैसे है? ऑनलाइन है। लाइफ मास्टरी वाला ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। वर्चुअल वाला, इन्फ्लुएंसर वाला इज मोर ऑफ ऑनलाइन मोड। गॉट इट, वेरी इंटरेस्टिंग, ग्रेट। सो आई थिंक अब ऑडियंस को ये भी पता चल गया कि नया क्या हो रहा है एंड हिमीश कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, एंड वेरी सून प्रोबेबली दे विल गेट टू नो मोर अबाउट इट एज वेल।
बट आई थिंक विद दैट मैं ऑब्वियसली क्वेश्चंस तो पूछती ही रह सकती हूँ, ये कॉन्वर्सेशन ऐसे कभी एंड नहीं होगी, बट दिस इज अ गुड पॉइंट टू आस्क वन क्वेश्चन बिफोर वी मूव टू द रैपिड फायर, जो मैं अपने हर गेस्ट से पूछती हूँ. एंड द रीजन आई आस्क दैट क्वेश्चन इज, ये पूरे पॉडकास्ट में आपको मेरा सबसे क्लीशेड और बेसिक क्वेश्चन लगेगा, पर इसका आंसर हर गेस्ट मुझे अलग ही देता है. अभी तक मैंने 30-35 लोगों को इंटरव्यू किया है और मुझे एक भी आंसर इसका सेम नहीं आया है, बिकॉज द परसेप्शन ऑफ इट इज सो डिफरेंट. अब हिमेश, योर जर्नी, इफ वी टेक, or we take anybody's journey, we spoke about how you are going to fail, but you're also going to succeed. And then there are going to be times where you're going to learn as well. Success है, failure है, सब part and parcel है. But जब आप एक journey देख लेते हो ना, the way you look at success, I think वो change होता रहता है over a period of time. Today, as you sit here, right, how do you look at defining success for yourself today? आज आप कब बोलोगे that I'm successful? मुझे लगता है कि सक्सेस की डेफिनेशन मेरे लिए एक्चुअली मैं अगेन इट्स नॉट अ क्लीशेड आंसर, बट आई रियली फील सक्सेस इज अ जर्नी. आई रियली डोंट फील के ये समझ लिया, मतलब शुरू में लगता था यहाँ पहुंच के सक्सेस है, यहाँ पहुंच के सक्सेस है. अब लग रहा है कि गेटिंग बेटर एवरी डे इज सक्सेस. मतलब आई एम एक्चुअली नॉट वेटिंग फॉर दिस माइलस्टोन टू हिट कि मैं बोलूंगा खुद को मैं सक्सेसफुल हूँ. मुझे लगता है कि अगर आज मैं 1% आगे बढ़ा हूँ, कि मेरी मॉर्निंग, आई हैव अ मॉर्निंग रूटीन जिसमें मैं अपने आप को ये रिमाइंडर्स देता हूँ. आई टॉक टू माई सेल्फ एंड हर रोज का ये कंसिस्टेंट है. आज तूने कोई नया एक्सपीरियंस ले लिया, कोई नई लर्निंग ले ली, और तू आज अगर खुश है तो तू सक्सेसफुल है. राइट. सो दिस इज हाउ आई स्टार्ट माई डे. तो मेरे लिए वो डेफिनेशन जो सुबह थी वो मैं आंसर के लिए बदलूंगा नहीं, वही रहेगी. बट वेरी वेरी वेल सिंप्लीफाइड, राइट. अगर आप खुश हो, आपने कुछ लर्न किया है, आप जो कल थे उससे 1% भी अगर आज बेटर हो, तो आप सक्सेसफुल हो. दैट मीन्स यू आर नॉट एसोसिएटिंग इट विद एनी मटीरियल वेल्थ, एनी ऑब्जेक्ट, फेम, सब्सक्राइबर्स, व्यूज, नथिंग. और वो लोग डिफाइन कर भी देंगे तो लोगों की डेफिनेशन तो बदलती रहेगी, क्योंकि वो उनके हिसाब से है. जिसके लिए पैसा सक्सेसफुल, मैं वो पैसा कमा लूंगा, उसको लगेगा ये सक्सेसफुल है, बट दूसरा कहेगा ये क्या सक्सेस हुआ. करेक्ट. मेरा फेम सक्सेस है, तेरे पास मेरे जैसा फेम नहीं है, मैं फेम की तरफ चले जाऊंगा. राइट. मैं फेमस हो गया. तीसरा आएगा, तेरे पास वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है. जब तक तुम स्पिरिचुअल नहीं हो, तुम जिंदगी में सक्सेसफुल ही नहीं हो. तो मैं लोगों की डेफिनेशन मीट करूंगा, इट मींस मैं एक ऐसी रेस में भाग रहा हूँ जो खत्म नहीं होनी. और जिस रेस ने खत्म नहीं होना, उसमें भागना क्यों है. True. एकदम सही बात है. बढ़िया. दिस इज अ गुड नोट. एंड अगेन आई हैव गॉट अ वेरी डिफरेंट आंसर. सबकी बहुत ही एक अलग टेक होता है इस पे, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग. एंड अगेन योर जर्नी, व्हाट यू हैव गॉन थ्रू, इज ऑल्सो डिटर्मिनेंट ऑफ हाउ यू आंसर दिस क्वेश्चन. मुझे यही लगता है. बट विद दैट हम एक बहुत फन इंटरेस्टिंग रैपिड फायर करेंगे. एंड ऑल आई वॉन्ट इज कि आप जो फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में आ रही है, जब या फर्स्ट लाइन जो आ रही है, जस्ट आंसर यूजिंग दैट. राइट. इट हैज टू बी स्पॉन्टेनियस. So the first question for Himish in the rapid fire round is, rank in your order of preference as of now money, fame, success and reputation. Money, fame, success and reputation. Reputation, success, fame, money. Why reputation on the top? Reputation था ना. हाँ, reputation. हाँ. मतलब अगर रेपुटेशन नहीं है तो उस पैसे को कमा के आप क्या करोगे. अगर लोगों के माइंड में कोई इमेज ठीक नहीं है आपका, ऐसा पैसा कमाना बहुत आसान है, और ऐसा फेम कमाना बहुत आसान है जिसमें रेपुटेशन ना हो. राइट. इट इज वेरी इजी. स्कैंडल्स करने शुरू कर दो. राइट. आपके पास पैसा तो आ सकता है, पैसा है. फेम भी आ जाएगा, हर न्यूज चैनल पे आप होगे. रेपुटेशन नहीं होगा. सही बात है. मनी आपने लास्ट डाला ना. मनी थर्ड आया था शायद. लास्ट. हाँ. ठीक है. फेम वाज थर्ड. यस. फोर्थ वाज मनी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू नो, हिमेश, that what is the silliest financial mistake that you have made in your life so far? सबसे silly, जहाँ आपको लगा कि यार क्या कर दिया ये मैंने. Could be personal, could be business wise, कुछ भी ऐसा silly financially आपको लगा हो कि this didn't make sense. हाँ, करी बहुत है सिली वाली. मैं सिलीएस्ट ढूंढ रहा हूँ. जो भी आपके दिमाग में आ रही हो, जो आपको लग रहा है कि ये नहीं करना चाहिए था. यस. तो सिलियस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद सबसे बड़ा मेजर चंक मैंने अपनी कैपिटल का वहाँ लूज किया है, तो वो सिलियस्ट इसलिए बोल रहा हूँ उसको. सो आई वेंट इनटू एडटेक वेयर इन आई वांटेड टू कीप डूइंग कंटेंट क्रिएशन एंड आल्सो बिल्ड अ एडटेक.
एंड एडटेक भी ऐसा कि Simultaneously. साइमल्टेनियसली। Okay. तो वो सिलियस इसलिए हो गया क्योंकि मैं दूसरे ट्रेनर्स को भी मेंटोर कर रहा हूँ, उस ब्रांड को भी बिल्ड कर रहा हूँ, और मैं कंटेंट क्रिएशन भी छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। तो वो जगलिंग में रियलाइज हुआ कि आप एंटरप्रेन्योरशिप एंड क्रिएशन एक साथ सेम लेवल पे करना चाह रहे हो, इट इज टू डिफरेंट बोट्स। Yeah. और ये बहुत सारे क्रिएटर्स ने गलती करी एक टाइम पे, करते ही हैं। और स्टार्टअप वेव जब आया तो बहुत लोगों ने पैसे डुबाए उसमें। So I also went into that, invested a huge chunk of my capital. Luckily, I got a good exit also. Okay. हाँ, बट मैं फिर भी उसको सीरियस बोलूंगा क्योंकि वो एग्जिट नहीं भी मिलती तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। मतलब आई वाज, वो मैंने समझ लिया था कि आप ऐसा। समझ गए। Interesting. Okay. The third question for you is that if you had a chance to have a round table dinner conversation with any 3 individuals, who would they be? They can be dead or alive, or they have to be alive. No, they can be dead or alive. They can be dead Yeah, or alive. but you will get 2 hours of intimate round table dinner conversation with them. मैं तीनों वो लोग बोलूंगा जो नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि वो इम्पॉसिबल, और इसको मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करूंगा। आप वही करोगे। गुड। हाइपोथेटिकली कुछ भी कर पॉसिबल है शायद मैं कर ही लूं जो अभी भी जीवित है। True. राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर जीवित की बात होती मैं रतन टाटा जी की बात करता, बट मे बी आई गो ऑन अ डिनर, बट लेट्स गो बैक। यस। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी क्योंकि उसमें होंगे शहीद भगत सिंह जी। ओह माय गॉड। राइट। आई रियली, मतलब कई टाइम में पीछे जा पाऊँ तो मैं बहुत कुछ सीखा है उनसे। मैंने आई रेड अ लॉट अबाउट हिम, सो आई वुड डेफिनेटली वांट टू मीट हिम। ओके। राइट। सेकंड वुड बी महात्मा गांधी जी, क्योंकि ये दोनों एक टेबल पे होंगे तो कन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगी। आई रियली वांट टू ब्रिंग 2 डिफरेंट थॉट्स ऑन द सेम टेबल, एंड दोनों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। एंड थर्ड होंगे अंबेडकर जी, बाबा साहेब अम्बेडकर। वेरी इंटरेस्टिंग है, ये तो बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है। दे हैव मेड द कंट्री, मतलब ये लोगों ने कंट्री बनाई है। तो मतलब इनसे मैं पूछना चाहूंगा टेबल पे कि आज आपको कैसा लग रहा है, आपने क्या इन्विजन किया था, राइट? बाबा साहब ने क्या सोचा था कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वक्त, आज लोग क्या कर रहे हैं। करेक्ट। जब भगत सिंह जी ने कुर्बानी दी थी तो क्या सोचा था, राइट? व्हेन गांधी जी क्रिएटेड दैट मूवमेंट, तो आई वुड वांट टू कनेक्ट फ्रॉम देयर टू वो रियल इन्फ्लुएंसर्स ऑफ दैट टाइम, द ट्रू इन्फ्लुएंसर्स। राइट। एंड तीनों कंटेंट क्रिएटर्स भी थे, तीनों ने राइटिंग्स भी बहुत स्ट्रांग दी हैं, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ी चीज क्या है? राउंड टेबल है, तो मुझे भी आना है एज अ 4th गेस्ट। काउंट मी इन। टिकट रख लेंगे। ओके, ग्रेट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन हिमीश इज दैट मुझे ये जानना है दैट basis whatever you have been through, what is that one learning जो आपके साथ बहुत ज्यादा स्टिक हुई है? It could have been through an experience, through a learning, a book, a podcast, somebody you admire. One thing, it's not an advice. एक चीज जो आपके दिमाग में हमेशा at the back of the mind you think has helped you reach where you are today. मैं 1000% कन्विक्शन के साथ बोल सकता हूँ, दैट इज कंसिस्टेंसी। बिकॉज मैं सुपर क्रिएटिव इंसान नहीं हूँ, मैं सुपर इंटेलिजेंट इंसान नहीं हूँ, मेरे में कोई ऐसी खास क्वालिटी नहीं है कि मैं लोगों को कुछ दे पाता, बट मैं कंसिस्टेंट रहा सीखने में और सिखाने में, जिस वजह से ये सब कर पाया। ओनली कंसिस्टेंसी हैज वर्कड फॉर मी। तब से अब तक लोग आए चले गए, कोई चैनल बनाया छोड़ गए, डाउन्स आए चले गए, बर्बादी हुई छोड़ गए, मैं हर वक्त लगा रहा, एंड it started paying off. The not giving up attitude and being persistent. Keeping up with it. Yes. वीडियो जाएगी तो जाएगी। वीडियो बनानी है, उसके लिए बैठ के पढ़ना है तो पढ़ना है। बस वो बाकी सब चीजें सेकेंडरी है। वो कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है और आज भी मेंटेन्ड है। परफेक्ट। वो कंफर्टेबल लाइफ कितनी भी हो जाएगी, कंसिस्टेंसी के लिए पूरी डिस्कम्फर्ट अलाउड है लाइफ में। ग्रेट। ठीक है, चलिए द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द रैपिड फायर, सिंस दिस इज अ करियर पॉडकास्ट, आपके हिसाब से वो कौन सी एक स्किल है जो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीबडीज एज हर इंसान को लर्न करनी ही चाहिए अपनी लाइफ में कभी ना कभी? द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल अकॉर्डिंग टू यू। स्किल वाइज बोलूंगा, एट्रीब्यूट नहीं बोलेंगे। अगर स्किल की बात करेंगे तो कम्युनिकेशन, एक्सप्रेसिंग, दिस कैन हेल्प इन मल्टीपल वेज। राइट। इवन इफ यू आर इंट्रोवर्ट, आप दिन में एक ही लाइन बोल रहे हो, लेकिन वो लाइन में आपकी कम्युनिकेशन स्किल झलकनी चाहिए, परफेक्ट एक्सप्रेशन झलकना चाहिए। नहीं, आई एग्री एंड आई थिंक कम्युनिकेशन की ऐसी इंपॉर्टेंस है कि आप कहीं भी चले जाओ, आप कुछ भी कर रहे हो, आज उसके बिना तो इंसान एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता है, आई फील टुडे। एंड अगर हम कंट्री लेवल पे सिर्फ इस स्किल को इंप्रूव कर दें, हाँ, फैमिलीज में क्या होगा सोचो। इफ अ फादर एंड सन आर एबल टू पर्सनली क्योंकि कम्युनिकेट। सोचते ही नहीं है ना लोग कम्युनिकेशन को हमेशा बिजनेस या कॉर्पोरेट स्टैंड पॉइंट में सोचते हैं। एक डाइवोर्स रेट कहाँ पहुंच सकता है अगर कम्युनिकेशन literally. इंप्रूव हो जाए। ऑफिस में रिलेशनशिप्स विल बी सो बेटर। हम बॉस के बारे में बाहर जाके कुछ कह रहे हैं, बॉस हमारे बारे में कुछ कह रहा है, आपस में कम्युनिकेशन ही स्ट्रांग नहीं है, बुरा तो कोई नहीं। ट्रू नहीं,
a global level also, it impacts everything actually. yes. हर Wars. चीज dependent है. True. But thank you so much, Amish. It was a wonderful conversation. इतना कुछ मुझे पता चला आपकी जर्नी के बारे में. Obviously इतनी चीजें थी जो मैंने खुद डिस्कवर की, जो मुझे आपके बारे में नहीं पता थी. There were so many learnings for me while conducting this podcast, and I'm sure जो भी इस point तक they've stuck around till the end, they're going to take back a lot of learnings, insights, lessons, and but जब तक वो उसे अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा. ये मैं हमेशा बोलती हूँ. तो अगर आप सिर्फ सुन के चले जाओगे, आई एम नॉट श्योर हाउ मच इट विल हेल्प, पर आप सुन के उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प. For everybody who has stuck around till the end, we will be linking Himish's social media channels obviously in the description. So definitely check them out. Apart from that, we will keep coming up with different episodes jahan pe obviously we'll get people like Himish so that you can learn from their career trajectory. But with that, Himish, anything that you would like to end the podcast on the note of? I hope you had a great time, and anything that you want to tell to the audience. Yeah, I also had great time. बहुत मजा आया. मतलब it is always energy का exchange. So you had that energy in the questions. वो quality of questions कि मुझे भी मजा आया हर चीज को answer करने का. So I also truly enjoyed it. Thank you so much, and I really hope it adds value. I was able to contribute, I hope. Definitely, definitely. And with that, that's it for today's episode. And don't forget to like, share, and subscribe to the Therapy Coach channel. I'll see you in the next episode.